Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. PPT is visible to all. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's start the session, and this is the last class of MES 13, and the rest class will be taken by Vishnupriya Jana madam as per your schedule given. So in 2 days we discussed about a block 1, that is learning the concept and process, and in block 1 there are 3 units, that is unit 1, unit 2 and unit 3, and unit 4. There are 4 units. Unit 1 Madam, your was that, voice is not audible. sorry, now it is audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In unit 1 we already studied about the learning and its scope. Unit 2 is all about the dynamics of learning, and unit 3 is learning issues and concern, and unit 4 is learning trends and system. My voice is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we will discuss about the block 2, and block 2 is the learner. And as your paper name is learning, learner and development, and block 1 is all about the learning, block 2 is all about the learner, and block 3 is all about the learning environment. So the block is divided in the, basically there are 5 blocks, but in block 1 is about learning, block 2 is about the learner, and block 3 is learning environment. And in block 2, the learner, there are 3 units, and the 3 units are: unit 5 is factors affecting learning 1, factors affecting learning 2, and unit 7 is the learner and its various perspective. So there are 3 units in block 2. First one is the factors affecting learning 1. Factors affecting learning 1 has some points, that is the identification of significant factors, classification of factor, which factor affects the learning. There are different factors which affects the learning, and these factors are basically classified as personal or individual and environmental. And this slide is not as per your material. So and this material is as per the psychology book J.S. Walia. So identification of significant factor, the factor in influencing learning. There are basically 2 factors. Uh, First one is personal or individual, and second one is environmental. If we divided the factors, then there are basically 2: individual and environmental. And under individual, there are again 2 types, that is psychological and physiological. And in environmental, there are different types of factors like learning style, method, organizational setup. So this is the one type of classification. But this classification is not as per the IGNOU material. It is I have collected from one of the psychology book,
educational psychology, J.S. Swalier. So, what factors affecting learning or factors influencing learning are classified into two parts, basically personal or individual and environmental. And personal is divided again into two parts, physiological and psychological. And environmental like learning style, method, organizational setup. And as per our material or IGNOU material, there are these factors are classified like intelligence, aptitude, goals, interest, readiness to learn, and maturation. So these are the factors which affecting learning: intelligence, aptitude, goals, interest, readiness, and maturation. So these are the 6 factors in the unit 1, first unit of the block 2. First one is intelligence. How intelligence affects our in the teaching learning process, or how intelligence affects the learning process. As there is the individual difference between the learner, so there is the difference between intelligence power of all children. ସମସ୍ତଙ୍କର intelligent quotient भी different, ସମସ୍ତଙ୍କର intellectual power भी different. ତ intellectual power ଯେହେତୁ different, ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ learning ବି different ହେଇପାରିବ basically. So there is no universal definition of the term intelligence. Each student is intelligent in some way because some ability, competence or skill has been demonstrated by each one of them. ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନି, ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ତ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଟା ଆମେ କହୁଛେ କି ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଖରାପ ପିଲା, ତ ଏଇଟା କହିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ସେଟା ଆମେ କେବଳ କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖୁଛୁ ବା କୋଉ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଦେଖୁଛୁ ନା ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ବିହେଭିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କାହାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଥାଏ, କାହାର ଖେଳରେ ଭଲ ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡେଫିନେସନ ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସଡ ନାହିଁ। each student is intelligent in some way because some ability, competence or skill has been demonstrated by each one of them. In operational term, it is definitely is a capacity or an ability for problem solving, thinking, reasoning, relating to others, dealing with emotions, developing interest, sense of right and wrong, and living in consonance with our environment. तो इंटेलिजेंस आम बेसिकली क्या डिफाइन करुच्ची को ऑपरेशनल टर्म को लेकिन जमती कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, थिंकिंग, रीजनिंग, रिलेटिंग टू अदर्स, माने एटा मेंटल एबिलिटी कथा कहूँ, किंतु ता बादे भी हमर अदर किसी एक्टिविटीज होची जोटा कि इंटेलिजेंस रो पार्ट। और समस्तंकर जदि इंटेलिजेंस जेहेतु इंडिविजुअल डिफरेंस, समस्तंकर इंटेलिजेंस कैपेसिटी भी अलग, तो समस्तंकर इंटेलिजेंस कैपेसिटी अलग हेले हमर लर्निंग भी समस्तंकर अलग हे परिबो, कार कम समय रे हे परिबो, कार अधिक समय रे हे परिबो। दैट हला इंटेलिजेंस फैक्टर। देन हला एप्टीट्यूड। Then aptitude is thus best understood as a stable ability of an individual that is readily available as a resource which can be applied to a specific task, requiring this ability, thereby enhancing his or her potential for learning. Natural ability to acquire knowledge or skill. Aptitude आम कौच aptitude skill. Aptitude skill कहले जोड़ा आम natural ability कौचु to acquire the knowledge or skill. एप्टीट्यूड कहले जनकर एबिलिटी केते गोटे जिनस से रिसीव करि परछु, केते रेडी अछि, संगे संगे केते से कैप्चर करि परछु, गोटे प्रॉब्लम टा को सॉल्व करि परछु, कहा पाखरे केते पोटेंशियल अधिक अछि, जेंति हमें कहछे तार एप्टीट्यूड स्किल अधिक अछि, माने से फटाफट कर दोछ गोटे जिनस, एटा हला एप्टीट्यूड। आ समस्त पाखरे समान न थाए, तो ए सब जे जिनस देखिबा एटा साइकोलॉजी अंडर रे आसीबो, कारण हमरो जो क्लासिफिकेशन हमें करिथिलु जो पर्सनल और इंडिविजुअल, तार सब क्लासिफिकेशन जो हेतिला साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल अंडर रे हमर जाय परिबो कोन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। आ फिजियोलॉजिकल कहले हमर फिजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड जा आसीबो, एटा फिजिकल आसीबो। मेंटल रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जो भी फैक्टर आसीबो से साइकोलॉजिकल अंडर रे आसीबो। देन हमर पॉइंट होची गोल्स। Goals plays a significant role in learning since they give strength and direction to it. When we learn only to meet the immediate goal of passing the examination, our learning is usually
temporary, and ineffective and we forget it soon after the goal is accomplished. For effective learning to take place, we should be able to relate it to all that we learn. This will enable us to achieve our life goal. ଯେମିତି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢୁ, ସପୋଜ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଗ୍ନୋ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲୁ, କେବଳ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପାଠ ପଢିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲୁ। ତ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡଟା କ'ଣ ହଉଛି, ସେଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବୁ, ସେଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଲାଇଫ ସହିତ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିବୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ, ତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। So when learning is guided or motivated by long-term goals, it helps us to reach newer heights and contributes productively and positively to our life. Thus, the type of goals that we set influence the amount of motivation to achieve them. तो गोल्स को किए केमिति गोल फिक्स करूची, के शॉर्ट टर्म पे पाठ पढुची, के लॉन्ग टर्म पे पाठ पढुची, के गोटे राति पाठ पढी के भी एग्जाम दउची, के वर्ष जाक पढी के भी एग्जाम दउची। तो डिपेंड करूची कहार माने गोल सेट, किए केमिति गोल को सेट करूचन, तापरे भी हमर लर्निंग डिपेंड करूची। किए सेट करिवे गोल, लर्नर, जेहेतु ब्लॉक र ना हला लर्नर, तो लर्नर ही हमर गोल सेट करिवे। And next slide is interest. कहार इंटरेस्ट केमती रोची, तो इंटरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। आ समस्तंकर इंटरेस्ट अलग अलग, कहार सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट आसुची, कहार एरिया को लेके इंटरेस्ट आसुची, तापरे कहार डिफरेंट जो करिकुलर अदर करिकुलर समस्तंकर इंटरेस्ट डिफरेंट एरिया रे रोची। The interest are usually classified on the basis of nature of activity involved. For example, spiritual interest, recreational interest, scholarly or academic interest, social interest. एमती समस्तंकर किछि ना किछि different interest अछि। काहाको आर्ट करिया पे भल लागुची, काहाको पाठ पढिया पे भल लागुची, काहाको नाच गीत करिया पे भल लागुची। तो इंटरेस्ट हमर डिफरेंट टाइप रो अछि और डिफरेंट एज हिसाब रे हमर इंटरेस्ट भी चेंज होउची। तो सेमती लर्नर इंटरेस्ट भी वेरी करिवो, से हिसाब रे हमर लर्निंग हे परिवो। तो इंटरेस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द लर्निंग। देन रेडीनेस टू लर्न, जेटा हम कहउतले जदि पिला रेडी नाही हमें तांको पढाई परिबेनी, तो लर्नर फास्ट रेडी होबा दरकार। मेंटली, फिजिकली, सोशियली, इमोशनली सब प्रकार रे से रेडी होबा दरकार। जदि गोटे पिला सब बेले देह खराब होबो ताहले भी से पढी परिबोनी, इमोशनली भी वीक अछि ताहले भी पढी परिबोनी। तो सब प्रकार रे से रेडी थिबा दरकार। The most expert teachers in schools know that no matter how hard they work or how good they are, they cannot force a student to think or do what he or she is not biologically ready to do. Thus, cognitive coming of age or maturation is another specific aspect of readiness to learn. तो mature म्हणजे readiness to learn पे भी हमारा maturity depend करता है। से maturity टा हला बाइजो माने सॉरी माने not biologically ready to do, माने बायोलॉजिकली भी हे पारे, किंतु जे खाली बायोलॉजिकली कहबो सेटा नुहे। टीचर जते भी एफिशिएंट थांतु, टीचर जते भी एक्सपर्टाइज थांतु, यदि पिला रेडी नाही तमे तांको जते भलो से पढेले भी से सुनिबेनी। तो रेडीनेस ही गोटे फैक्टर जोटा कि हमरा लर्न ने हेल्प करूची। तो टीचर जते भी एक्सपर्ट होंतु, जते परिश्रम करंदी, से राति सारा लेसन प्लान लिखिबे, हम एक्टिविटी करिवु, टीएलएम बहुत भी अट्रैक्टिव थिबो कि जहां भी थिबो, किंतु पिला ही मेंटली प्रिपेयर नाहंती, रेडी नाहंती पढिया पे। तो से सॉरी केते समय हेलानी कटिलानी।
किसी समय होला मैडम 2-3 मिनट है ठीक अछि कहली से वीडियो ऑन होने मैम आपण म्यूट कर देइछन किसी सुना जाउनी एबे सुना गला आज्ञा ठीक अछि स्लाइड देखा होची यस मैम मैच्योरेशन सरची तो ना मैम रेडीनेस टू No, लर्न no, स्टडी ma'am. चालू किया नेक्स्ट टू लर्निंग No, ma'am. Maturation, sorry. हां देखंदो मैच्योरेशन यदि कथा कहबा हमर पर्टिकुलर किए केते को माने स्पेसिफिक एज ग्रुप रे भी हमर किए केते मैच्योर्ड होउछन ता ऊपर लर्निंग भी डिपेंड करूछ तो मैच्योरेशन हैज टू बी thus understood as a natural process of unfolding of the development stages resulting in functionally preparing an individual to acquire mastery over his or her environment mute कर देबे तो maturation कहले जे maturation can be best interpreted as relatively permanent change in an individual be it cognitive way रे भी हे पारे emotional physical that occurs as a result of biological aging regardless of personal experience तोडा cognitive हिसाब रे biologically basically हमर maturation दा तो माने biological age हिसाब रे हमर cognitive emotionally physically हिसाब रे कहार कोन चेंजेस होछि किए कॉग्निटिव माने कॉग्निशन हिसाब रे मेंटल एबिलिटी कार अधिक कम रहउची इमोशनली भी माने सेम एज ग्रुप रे किछि पिला बहुत मैच्योर्ड थान जे माने बहुत बुझिला पिला थांदी और किछि पिला जेमति कि माने पिलाळी आमे बहुत थांदी कि फिजिकली भी फिट थाए सेम एज ग्रुप रे कि बहुत वीक थांदी कि ओवर ग्रोथ हे जइथे तो मैच्योरेशन ता हमर डिपेंड करूची भी मैच्योरेशन ना लर्निंग भी हमर मैच्योरेशन ऊपर डिपेंड करूची तो these are the factors affecting learning जोटा कि हमर ओवरऑल यूनिट 5 थिला जे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर कहा को बेस करके हम फैक्टर डिवाइड करबा जेमति कि हमर गोटे हला इंडिविजुअल और एनवायरमेंटल तो जो इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड गोल इंटरेस्ट रेडीनेस टू लर्न मैच्योरेशन तो ये ओवरऑल सब फैक्टर होची कहा ऊपर डिपेंड करछ हमर इंडिविजुअल सेटा बेसिकली प्राय तो सब साइकोलॉजिकल जेमति कि इंटेलिजेंस हला साइकोलॉजिकल फैक्टर एप्टीट्यूड भी साइकोलॉजिकल फैक्टर गोल्स भी आछी साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरेस्ट रेडीनेस टू रन और रेडीनेस ता हमर फिजिकली कि मेंटली जति मेंटली आसीबो साइकोलॉजिकल जदि हमर फिजिकली कहबा ताले फिजियोलॉजिकल आसीबो आ मैच्योरेशन भी जदि सेमति कहबा मेंटली कथा कहबा ताले से साइकोलॉजिकल आसीबो फिजिकल कथा कहले आसले फिजियोलॉजिकल आसीबो किंतु ओवरऑल जदि देखिबा सब किछि फैक्टर जो 6टा फैक्टर रहिला कहाँ अंडर रे आसुची ना हमर जो क्लासिफिकेशन हेतिला पर्सनल और इंडिविजुअल तांको अंडर रे आसुची
तो यूनिट 5 is all about the individual factors which affecting learning. So these are all about unit 5. Then comes to unit 6, and unit 6 is that factors affecting learning 2, part 2. And in this unit there are 7. There are 7 factors, that is motivation, self concept, locus of control, level of aspiration, learning style, attitude, sociocultural factor. So these factors are affecting learning. First one is motivation, and there are different type of motivation: intrinsic motivation, extrinsic motivation. That intrinsic means within, and extrinsic external. आम निजे निजे भीतर भी मोटिवेशन आनीपर, आम निजे निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेभलप कर जहाँफल आम लर्निंग हो पार। एक्सटेंसिक कहले आम एक्सटर्नाली मोटिवेशन देवा, जोटि कि आम किसी पिला रिवार्ड दौचु कि पनिशमेंट दौचु कि एनकरेज करुचु। The motivation is formally defined as an internal state that arises, directs and maintain behavior. माने behavior को हमरो change करिया पे गोटे internal state. Motivation as an internal energy or a mental force that drives a person to achieve a goal. यदि internally हेले ताको हमें intrinsic कहबो, externally जो force हमर drive करछि ताको हेले हमें कहबा extrinsic motivation. For example, students who are motivated in school tend to achieve higher, then they stay in school longer, get involved in all the class tasks, learn more in general and perform better on test. जदि से स्कूल रे मोटिवेटेड होची रहिबा पई ताले से सब प्रकार टास्क करिवो आ दर टेस्ट रे भी बेटर परफॉर्मेंस हे परियो। जदि से स्कूल रे रहिबा पे मोटिवेशन ताको मिलुनी ताले से पाठ सेठी पढिबेनी पिला। तो तापे कौन दरकार आम इंटरनाली मोटिवेशन तो जोटा पिला निजे करेंगे कि तापे भी आम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा, सिचुएशन प्रोवाइड करवा, आम ए जगह एक्सटर्नल मोटिवेशन बेसिस तो आम दे परिबा पिला को। एक्सटर्नल मोटिवेशन को आम किसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करि परिबा, पिला को डिफरेंट काम रे आम इन्वॉल्व करि परिबा, तांको सहित टाइम स्पेंड करवा। तो ताले पिला माने भी स्कूल को सेतिकी भल पाइबा और स्कूल को रेगुलारली आसबे और रेगुलारली स्कूल आसिले तांकर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक ही भलो हो। तो मोटिवेशन भी हमर लर्निंग ऊपर अफेक्ट करूची। आ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहबा पिला निजे निजे मोटिवेट हेबे, केमती मोटिवेट हेबे से कहार केमती इंटरेस्ट थाए को एरिया रे से निजे सेमती मोटिवेट हे परिबे। निजे निजर केना पिला और निजे केमती मोटिवेट हेबे माने ता ऊपर डिपेंड करछ हमर पेरेंटहुड बा फैमिली में डिपेंड करछ। देन तापर होची सेल्फ कांसेप्ट। सेल्फ कांसेप्ट भी हमर आसीबो में इंडिविजुअल कहि परिबा, इंडिविजुअल फैक्टर कहि परिबा, एनवायरमेंटल फैक्टर अंडर भी आसी परिबा। सेल्फ कांसेप्ट सिना डेवलप हो जता ता पय दाई हमर एनवायरनमेंट, जोटा कि हमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ही हमको कहूची जे हमर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कांसेप्ट ही डेवलप होबा दरकार, ताले जे कि लर्निंग हे परिबो। जेमति कहले हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहूची कि नै बिहेवियर चेंजेस हेले ही लर्निंग होबो। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट कहले से कहले नै मेंटल एबिलिटी डेवलप हेले हम कहबा लर्निंग होउची। आ तापर हमर साइको सोशल जे कहले नै सोशल इंटरेक्शन हेले होबो लर्निंग हम कहि परिबा। के कहउती नै कल्चर सहित इंटरेक्शन हेले लर्निंग हे परिबो। तो समस्त डिफरेंट टाइप ऑफ रो हमर पर्सपेक्टिव हिसाब रे लर्निंग को डिफाइन करचंदी। तो सेमति सेल्फ कांसेप्ट इज ए ब्रॉडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स द सब कैटेगरीज ऑफ सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ इमेज कहले हमें जोड़ा आम आम इमेज को देखु कौन हवा आम चाहूँ, कौन हवा चाहूँ कि कौन भावुचु आ कौन होउछु गोटे जिनिस। सेल्फ इमेज रेफर्स टू one's own perception about oneself, what one's strength and capabilities are and what one's weakness or limits are। निजे निजर स्ट्रेंथ कौन, वीकनेस कौन, निजे निज को चिन्हिबा दरकार सेल्फ इमेज। देन सेल्फ एस्टीम refers to the value a person place on himself or herself, तांको पाखरे कौन कौन values अछि। then self efficacy refers to person's belief in her ability to get things done। तो सब सेल्फ कांसेप्ट हो, सेल्फ इमेज हो, सेल्फ एस्टीम हो, सेल्फ एफिकासी हो। सेल्फ एस्टीम कहले बेसिकली व्हाट दे थिंक, सेल्फ इमेज कहले व्हाट दे फील। जदि आमे कहि परिबा कि से माने निज विषय रे कोन भाबुचंती, निज निजर इमेज विषय रे कोन भाबुचंती, तांको विषय तांकर कोन कैपेबिलिटी अछि, तांकर स्ट्रेंथ कोन, वीकनेस कोन। तो सेल्फ इमेज हो, सेल्फ एस्टीम हो किबा सेल्फ एफिकासी हो, तांको एबिलिटी हो, तो सब ओवरऑल कहा अंडर आछि सेल्फ कांसेप्ट।
ଆଉ ଏ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଟର୍ମ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର कार्ल रोजर ଦେଇଥିଲେ कार्ल रोजर କି ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚର ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଫାଦର କହିପାରିବାନି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରପୋନେଣ୍ଟ କହିପାରିବ ସେମିତି କି ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ବି ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫୋର୍ସ କହିବେ ଯେ ମାନେ ଯେମିତି କି ସାଇକୋଲୋଜିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଯେମିତି କି ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ହ୍ୟୁମାନିଜିମ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ବିହେଭିୟରିଜିମ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ତ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି कार्ल रोजर ହିଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ତ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ବି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହୁଇଚ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେନ୍ ହେଲା ଲୋକସ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକସ୍ କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ ଅଫ୍ କହୁଛୁ ତ ଲୋକସ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଲୋକସ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ବିଲିଭ ଆବାଉଟ ହାଉ ମଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେ ହେଭ୍ ଓଭର ଦେୟାର ଲାଇଫ ଲୋକସ୍ କହିଲେ ସମ୍ ଅଫ୍ ତ ଓଭରଅଲି ଆମର ଲାଇଫ ଉପରେ ଆମର ନିଜର କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ତ ଲୋକସ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ ଏ ପର୍ସନ୍ ବିଲିଭ ଆବାଉଟ ହାଉ ମଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେ ହେଭ୍ ଓଭର ଦେୟାର ଲାଇଫ ନିଜେ ଆମର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ସପୋଜ ମତେ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ବସିକି ହିଁ ଖାଲି ଆର୍ଟ କରିବି ତ ବାକି ଜିନିଷ ବି ମତେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିବା ପାଇଁ ବି ପଡିବ someone with an internal locus of control will believe that the things that happen to them are greatly influenced by their own abilities action or mistake a person with an external locus of control will tend to feel that other forces such as random chance environmental factor or the action of others are more responsible for the events that occur in the individual's life तो जो locus of control रहिला हम कहि परबा टू टाइप्स इंटरनल और एक्सटर्नाल हेले किसी एफेक्ट्स पकेबो जेमि एनवायरमेंटल किसी फैक्टर हला जे काहा को कोन चांस मिलुची कहिया पे ताले सेटा आप एक्सटर्नल इंटरनली कहले जे जार एबिलिटी को ताकर के मिस्टेक रो भी किछि सिखुचंदी ताकर एक्शन यदि मिस्टेक ता रिपीटेडली होबो तो मिस्टेक ता भी कंट्रोल होबार अछि तो many psychologists are of the view that parenting style sociocultural values and the individual's own motivational structure beliefs perception and learning style determine his or her locus of control तो निजर केते कंट्रोल निज ऊपर अछि सेटा को फैक्टर ता ऊपर डिपेंड करूची ना की डिटरमाइन करूची ना पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंटहुड केमती तांको ऊपर कहार पेरेंटिंग स्टाइल केमती अछि कि अथॉरिटेरियन कि परमिसिव कि को पेरेंट्स केमती रहउचंती सोशियो कल्चरल वैल्यूज इंडिविजुअल्स ओन मोटिवेशनल स्ट्रक्चर बेले कोन हुए ना फैमिली बैकग्राउंड हुए तो हेते भलो न थाए किंतु हेले भी पिला से जेडा हम कहूजे कि गुंडे माने बहुत तांको फैमिली रे के पाठ पढ नथले किंतु पिला पढुचन तो सेडा कोन होची ना सेल्फ मोटिवेशन तांगर आसुची तो इंडिविजुअल्स ओन मोटिवेशनल स्ट्रक्चर बिलीव्स परसेप्शन लर्निंग स्टाइल तो सब किछि हमर डिटरमाइन करूची एंड हिज और हर लॉकस ऑफ कंट्रोल तो लॉकस ऑफ कंट्रोल को भी हमें कहि परिबा वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग लर्निंग किंतु एटा हमें इंडिविजुअली भी नहीं परिबा आ एनवायरमेंटल रे भी नहीं परिबा देन मैम हां मैम मैम टिके मु कंफ्यूज थिली हमर एटा जुलाई सेक्शन रो ए क्लास ता होनी कि फर्स्ट ईयर कोनटा कहले मैम फर्स्ट ईयर रो फर्स्ट सेमेस्टर पई ए क्लास होनी कि हटा फर्स्ट ईयर पे क्लास हो जे सेमेस्टर तो किछ होई नहीं एग्जाम हमर आज्ञा वार्षिक आज्ञा फर्स्ट ईयर हां हमर मैम वार्षिक के एग्जाम ना आज्ञा मैम मो पाखु बही आसी पोस्टल रे मो बही रो टिके देखि जानि परनी टी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एमती देछि एजुकेशनल रिसर्च आ गोटे ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन टिके बुझी पानी मैम ए बही केमती कोन अछि टिके कहबे रिसर्च पेपर तुम सेकेंड ईयर अच्छी फर्स्ट ईयर रिसर्च नहीं आज्ञा मैम हम फर्स्ट ईयर रे केतरा सब्जेक्ट आसुछि फर्स्ट ईयर रे 6टा थिबो बदे मो मैडम कंफर्म फर्स्ट हुए ईयर थोड़ा जो एजुकेशनल रिसर्च मैम भी होती है एमएससी 11 ठाରୁ एमएस 16 जाय अछि फर्स्ट ईयर मैम एमएससी 6टा 11 पेपर 12 13 14 15 16 6टा आपण देखिथिबे जो फॉर्म फिल अप करथिबे एप्लीकेशन फॉर्म रे लिखा है को पेपर पे आपण फॉर्म अप्लाई करजंती से पेपर कोड हिसाब रे आपण बुक को देखि के पढिबे फर्स्ट ईयर मैडम कंपलसरी अछि एथरे ऑप्शनल नै मैम एमएस 11 ठाରୁ एमएस 16 पर्यंत कंपलसरी 16 समस्त पई हां मैम मो पाखु 15 और 16 गवर्नमेंट कोटा तो देती है। रिसर्च टा हमर सेकेंड ईयर रे अछि 6टा पेपर 6टा थिबो बदे मो कंफर्म हुए मैडम फर्स्ट ईयर रे 6टा थिबो बदे मो कंफर्म हुए फर्स्ट ईयर
मैडम 15 ଆଜ୍ଞା 16 टा दीटा वॉल्यूम रे रहउची चारटा बही एक्चुअली मु ହଁ ସେଟା ବଡ ବହି ଅଛି कन्फर्म ନା नुहे ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି बुक ଭଲ୍ୟୁମ सहित ଭଲ୍ୟୁମ କହିବି। एक्वाइंटेड नुहे जेतु आमे पखरे सॉफ्ट माने सॉफ्ट कॉपी ही अछि तो सेटा कन्फर्म नहीं किंतु पेपर कोड देखिकी पढिबे आ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ବହି ପଠା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆମକୁ କେବଳ ପଠା ହେଇଛି 14 15 16 ତିନିଟା ପଠା ଯାଇଛି ଆଉ 16 ର ଦିଟା ପଠା ହେଇଛି 15 ର ଦିଟା ପଠା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 11 12 ଏଗୁରା ପଠା ଯାଇନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିबो जदी आसी नहीं से बुक आसीबो ना मैम ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ऑलरेडी एतन पळे आसला ना हमर जने पळे आसला हो ठीक अछि हमें कंटिन्यू करबा मैम यस ମ୍ୟାମ୍। पर्टिकुलरली लोकस माने कोन कोनडा होइले पर्टिकुलरली लोकस माने कोन क्लियर सुना जाउनी कोन होइले आउथरे मैम जो आपण कहले लोकस ऑफ कंट्रोल तादरे लोकस रो अर्थ कोन लॉकस कहले सम टोटल लॉकस ऑफ कंट्रोल माने ओवरऑल हमर निजर निज ऊपर केते कंट्रोल रहउची लॉकस ऑफ कंट्रोल ओवरऑल हमर निज ऊपर कंट्रोलिंग जेंते हम इमोशनली केते कंट्रोल फी सब ओवरऑल कंट्रोल कोन कहा ऊपर माने निज ऊपर केते रहउची से भी गोटे फैक्टर और कंटिन्यू करबा यस यस ମ୍ୟାମ୍। मैम कंटिन्यू करो The next होची level of aspiration. The level of aspiration, as the name suggests, refers to where and how far individuals set their goals and target for achievement. Level of aspiration, as the name suggests. The name कौन suggest होची? It refers to where and how far individuals set their goal and target for achievement. କେଉଁଠାରେ ଆଉ ମାନେ ହାଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଟ୍ ଦେୟାର ଗୋଲ କେମିତି ସେ ଗୋଲ କୁ ସେଟ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେମିତି ଗୋଲ ଫିକ୍ସ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଲେଭେଲ ଅଫ ଆସ୍ପିରେସନ ଯେମିତି କି ଅଛି according to Weiner most of the attributed causes for success or failure can be characterized in terms of the three dimension ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ହଉଛି କୁହା ହଉଛି locus ଯେମିତି କି location of the cause as internal and external to the person stability and responsibility तो ये तीनटा फैक्टर ऊपर हमरो डिपेंड करछु कि गोलटा केते अचीव होबो कि नहीं तो याको भी हमें कहि पारछु लेवल ऑफ एस्पिरेशन if success or failure is attributed to internal factors success will lead to pride and a high level of aspiration and learning failure will lead to setting low level of aspiration and learning जदि हमरो कोन होची if success or failure is attributed to internal factors then success will lead to pride and high level of aspiration जदि हम सक्सेस होउछु इंटरनल फैक्टर को नहीं कि ताहले हमरो कोन होउची एटी हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन होउची आउ लर्निंग भी होउची जदि हम ए जगह फेलियर हे जाउछु ताहले कोन होउची एटी हमरो एस्पिरेशन दा लो हे होउची नॉर्मली एस्पिरेशन लेवल ऑफ एस्पिरेशन कहले हमरो जो टारगेट रहला से टारगेट को अचीव करिया पे हम केमिति कोन प्लानिंग करछु बा को हिसाब रे फ्रेमवर्क करूछु हाउ एंड वेयर In addition, feeling in control over one's learning seems to be related to having a high level of aspiration. Choosing more difficult tasks to do, putting out more effort, and persisting longer in one's work. That I am going to high level of aspiration. High level of aspiration example achieve. A feeling in control over one's own learning seems to be related to having a high level of aspiration. निजे निजे ऊपर control जो करिबा में चैलेंजिंग टास्क किछि नबा डिफिकल्टी टास्क नउछु त ताले हमर लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई अछि जेमति कि हम कहउछु 10th रु ही पिला को जज कर दोछु कि को लाइन रे जिबे कि भलो पडुछि कि खराब पडुछि कि कार कोन सेतिर ही तार माने पिला को जो इंटरेस्ट रहिछि माने से माने केते हार्ड वर्क करूछंती सपोज हम गोटे फॉर्मूला पढेले फोर्स रो ता रिलेटेड किछि न्यूमेरिकल दबा तो किए केते डिफिकल्टी लेवल रो टास्क करि परुछि तो सेहि हिसाब में हमें कहि परबा तार लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई रहउछि जेटे कम लेवल रहउछि तार लेवल ऑफ एस्पिरेशन कम आसुछि तो most teachers report that bright students have high level of aspiration as they believe they can achieve well in life and they tend to make great efforts to learn and perform to fulfill their goals in this case of low achievers usually the level of aspiration is low हमर गोटे क्लास रे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट रहिबे ब्राइट स्टूडेंट भी रहिबे स्लो लर्नर भी रहिबे गिफ्टेड भी रहिबे क्रिएटिव स्टूडेंट्स भी रहिबे तो डिफरेंट स्टूडेंट कर डिफरेंट लेवल ऑफ एस्पिरेशन आसीबो आ लेवल ऑफ एस्पिरेशन डिफरेंट हेले लर्निंग भी डिफरेंट हबो
और लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऊपर भी बहुत सारा फैक्टर डिपेंड कर जेंति कि हम कहले मोटिवेशन एनवायरनमेंट हैला तांको सराउंडिंग रे कोन होची सोशियो कल्चरल स्टेटस ସେମାନେ କେତେ सोशलाइज होचନ୍ତି तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन गुटे फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स लर्निंग और लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऊपर भी और बहुत सारा फैक्टर डिपेंड्स कर समस्त इंटरकनेक्टेड देन हला लर्निंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल हला समस्तंकर डिफरेंट किए सोई के पढुची किए बसी के पढुची किए 2 घंटा पढुची किए घंटे पढुची किए चित्र करी के पढुची किए वीडियो देखि के ही पढुची तो समस्तंकर लर्निंग स्टाइल अलगा अछि जे जदि टीचर जण को कहउचंदी कि तमे एमिति ही पढो कि तमे समस्त बसी के कांस्टेंटली गोटे पीरियड पढो सेटा समस्तंक पे सेटा अचीवेबल होउनी कि घरे पढिले भलो पढुचंदी कि क्लासरूम रे पढिले भलो पढुचंदी किछि पिला हॉस्टल रे भलो पढो माने सांग साथी को सहित पीयर ग्रुप को सहित भलो पढी पारंती किछि पिला साइलेंटली पढिया पे भल पांदी तो लर्निंग स्टाइल समस्तंकर डिफरेंट रोज the learning style individuals show preference for different learning conditions these are called learning style or learning preference some students learn well in the morning while some other prefer to study at night जेमति कि हम कहले किछि पिला सकाळ भोर उठी के पढिया पे पसंद करंती किछि पिला लेट जाय पढिबे किंतु सकाळ पूरा डेरी रे उठिबे some students like to sit in quiet places while some others like to have music किछि पिला देखिबे गीत सुनी सुनी पढंती तो समस्तंकर लर्निंग स्टाइल अलग अछि किछि पिला डाइनिंग टेबल ले भी बसी के पढुचंती किछि पिला खाई खाई भी पाठ पढंती तो समस्तंकर लर्निंग स्टाइल हमर अलग रहउछ देन हला एटीट्यूड्स हम एटीट्यूड भी हमर इफेक्ट पकोछ कहां पर ना लर्निंग जो तमे लर्न हमर मेन हला टारगेट कोन है यूनिट ना हला लर्नर तो लर्नर कर एटीट्यूड केमिति हला हमर लर्निंग केमिति होबो ना एटीट्यूड केमिति अफेक्ट पकोछ लर्निंग ऊपर तो एटीट्यूड्स आर born out the process of socialization and usually have a knowledge and feelings component we have attitudes towards object events person समस्तन को पे हमर एटीट्यूड बा एरा में कहूछ मनोभाव समस्तन को पे डिफरेंट है हम ऑब्जेक्ट को केम टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट केमिति हमर एटीट्यूड रहउची टुवर्ड्स इवेंट्स towards person specific person को सहित केमती हमर एटीट्यूड रहउची our attitudes may be positive हे पारे नेगेटिव हे पारे और न्यूट्रल हे पारे को जिंस को हम इजीली एक्सेप्ट करूछु भल पाउछु कहा को माने पसंद करूनु मुझे माने टीचर को ए कैरेक्टरिस्टिक्स हमको भल लागुनी कि संग मान को ए गुण भल लागुनी किछि पिला न्यूट्रल थांदी भल कोन खराब कोन से न्यूट्रल जहा ले भी ठीक अछि तो एटीट्यूड्स में हमरा डिपेंड इफेक्ट करछि लर्निंग ऊपर कहार एटीट्यूड केमति कोडा पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल however if we disapprove of how the younger generation dresses and behaves in urban areas or about contemporary hindi cinema our attitude towards them will be negative माने एज ग्रुप ऊपर भी डिपेंड करूछि एबेका जनरेशन हमर पुराना जनरेशन अपकमिंग जनरेशन किए केमति डिपेंड करूछि if we are inclined towards reading cricket good health fitness etc we will have a positive attitude towards books games going for morning walk जिम्नासियम एटसेट्रा यदि हमें रीडिंग क्रिकेट गुड हेल्थ फिटनेस प्रति ध्यान दबु ताहले हमर एटीट्यूड कोन होबा दरकार ना हम सब बही पडिबो गेम खेलिबा रेगुलरली मॉर्निंग वॉक जिबा कि जिम जिबा ताहले जे कि हमर से सब जिंस प्रति हमर एटीट्यूड ता पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हे परिबो these are some things which we are indifferent about our attitudes towards them is usually neutral तो एटीट्यूड्स हमरो सिंपली हम कहबा एटीट्यूड हमरो पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे न्यूट्रल हे पारे एटीट्यूड्स से डेवलप हे पारे टुवर्ड्स इवेंट सिचुएशन पर्सन ऑब्जेक्ट हे पारे हमरो एटीट्यूड और डिफरेंट एटीट्यूड्स हिसाब रे हमरो लर्निंग ता डिफरेंट हे परिबो सपोज किछि पिला हमरो गेम को भलो पांतिनी नॉर्मली हम जदी हम देखिबा बॉयज गर्ल्स को से तो कंपेयर करिबा प्राय तो जेमति कि हम को जियो माने बेसी कुकिंग को भल पाउछन हाउस होल्ड एक्टिविटीज को भल पाउछंती तो से तांकर एटीट्यूड ता सेमति टुवर्ड्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज पॉजिटिव रहउछ यदि पो पिला कथा से मन सब क्रिकेट खेलिया को धर भल पाउछंती तांकर पॉजिटिव एटीट्यूड रहिछि क्रिकेट प्रति भल रहउछ तो से हिसाब रे लर्निंग तो तांकर क्रिकेट प्रति जो लर्निंग के क्रिकेट केमति खेलाबे को प्लेग्राउंड रे खेला होछि तार रूल रेगुलेशन कोन अछि तांकर लर्निंग ता सेठी से हिसाब रे डेवलप होछि किंतु हम जे पिलांकर धर हाउस होल्ड एक्टिविटीज रहउछि कि रोसे रे रहला केमति जिंस ऑर्गेनाइज करबा एस्थेटिक सेंस रहउछि हमर ता ऊपर लर्निंग ता
से जहार एटीट्यूड माने जो जिनस प्रति पॉजिटिव रहबो से तांकर शिक्षार भी इंटरेस्ट सेतिकी अधिक रहइबो। देन हला सोशियो कल्चरल फैक्टर जेमति कि हमें कहूछु सोशियो कल्चरल सोसाइटी और कल्चर सहित आसीबो। So for our understanding, we can subdivide socio-cultural factors into family, neighborhood and community, class, caste, religion and ethnicity. तो overall को ये सब जिनस हमर लर्निंग ऊपर इफेक्ट्स पकोछ। फैमिली हमर को प्रकार फैमिली अछि, न्यूक्लियर फैमिली किबा जॉइंट फैमिली, हमर फैमिली रे मेंबर केते जण रहउछन्ती, कहार कोन ऑक्युपेशन रहिछि, देन हमर सराउंडिंग रे हमर नेबरहुड केमति अछन्ती, कम्युनिटी केमति अछि, आम जो कम्युनिटी रे रहू जो सोसाइटी रहू तार स्ट्रक्चर केमती अच्छी को क्लास कास्ट रिलीजन एथनिसिटी आम कहूँ कि जोड़ा आमर कहार केमती पिंधिबा स्टाइल कहार केमती खाइबा स्टाइल ता ऊपर भी हमर लर्निंग डिपेंड करूछि। It is within the family that the individual learns behavior patterns for survival, social skill, attitudes, interpersonal skill, social norms, the do's and don'ts of his or her culture and community acquires a sense of right and wrong, a value orientation etc. जोटा हमें कहूँ moral development पिला गोटे ठीक कि भूल जजमेंट करि पारुछि तो कहाँ ऊपर बेस करिकी ना सेटा जदि हमर फैमिली ठीक थिबा हमें फैमिली रे ही सेमते हमको सिखा जाउछि पैटर्न्स फॉर सर्वाइवल आमे केमिति आमे निजे निजे को सर्वाइव करि परिबा आमे इकोनॉमिक सॉरी जोडा आमे कहूचे इमोशनली केते स्ट्रांग हे परिबा सोशल स्किल जेमति कि आमे कहूचे जॉइंट फैमिली रे बहुत जण मेंबर रहिले तो पिला माने समस्त सहित किछि ना किछि इंटरेक्ट करूचंती तो तांकर कम्युनिकेशन स्किल सेति कि भलो थाए यदि आज कंपेयर टू आमे कहिबा हमर न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली रे अधिक थाए किंतु ता परे भी हमर डिपेंड करूची कि केते डिबेट करूची कि केते प्रैक्टिस करूची कहार केते स्पीच दउची सेमते नै पर्टिकुलर गुटे क्राइटेरिया को देखि कि हमें कहबा इंटरपर्सनल स्किल इंटर कहले दी जन को जोड़ा हमें कहूची इन बिटवीन कहले इंटरपर्सनल विद इन हेले अब इंट्रापर्सनल सोशल नॉर्म एंड द डूज एंड डोंट्स ऑफ हिज और हर कल्चर तांको कल्चर रे कोन करिया पे पडिबो कोन न करिया पे पडिबो तो से थ्रू भी हमर लर्निंग आसुछि तापर हम कहूछ जे सोशल कल्चरल एक्सचेंज हम प्रोग्राम भी करि परिबो स्कूल ले तो जे जा कल्चर विषय रे भलो से जानिले ही से कल्चरल एक्सचेंज हे परिबो the neighborhood and community in which one lives also have a potent impact on what one learns and acquire learning is also seen to vary across religious and ethnic groups owing to the distinction in their beliefs values attitude and practices तो लर्निंग टा हमर डिफरेंट जो रिलीजियस हला एथनिक ग्रुप हला ता ऊपर भी हमर लर्निंग वेरी करूछ तो सोशियो कल्चरल फैक्टर इज वन ऑफ द हमें कहि परिबा एनवायरमेंटल फैक्टर भी हे परिबो इंडिविजुअल भी हे परिबो कारण किए को सोसाइटी रे रहउछ इंडिविजुअल हे परिबो आ जो इंडिविजुअल जे रहला ता सराउंडिंग रे कोन एनवायरमेंटल फैक्टर अछि तो सोशियो कल्चरल फैक्टर को हम ओवरऑल इंडिविजुअल भी नै परिबो एनवायरमेंटल फैक्टर भी नै परिबो तो हला ओवरऑल फैक्टर जेमति कि फर्स्ट यूनिट रे हमें पढिले पांचटा फैक्टर आ सेकंड यूनिट रे पढिले हम सातटा फैक्टर तो टोटल सातटा फैक्टर हमर डिपेंड्स करूची लर्निंग ऊपर तथापि देखि दबा आउथरे यूनिट 6 रे हमर थिला कोन कोन ना एटा इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड गोल्स इंटरेस्ट रेडीनेस टू लर्न मैच्योरेशन टोटल 6टा आ यूनिट 6 रे थिला 7टा तो 7 6 13 टोटल 13टा फैक्टर यदि कम आज पर योर सिलेबस बा मटेरियल सेमिते बहुत सारा फैक्टर अछि किंतु ते पर्टिकुलर मटेरियल को देखि कि लिखिबा तो ताले हमर 13टा फैक्टर्स रोचे मोटिवेशन सेल्फ कांसेप्ट लोकस ऑफ कंट्रोल लेवल ऑफ एस्पिरेशन लर्निंग स्टाइल एटीट्यूड सोशियो कल्चरल फैक्टर तो एटा हला यूनिट 5 और यूनिट 6 देन हला यूनिट 7 Unit 7 is all about the kono the learner various perspective the learner and various perspective हिसाब रे learner कोन अछि एमति कि learner style and preference learner style केमति field dependence field independence impulsivity versus reflectivity माने learner मानकर style केमति होमा दरकार को perspective होबा दरकार जेमति कि field dependence field independence other classification of cognitive styles, sensory modalities and preferences, achievement and learning capacity, factors that influence academic achievement, learning capacity, study habits,
and learner as a member of a peer group, learning environment, a learning environment both competitive or cooperative, mass media, individualized learning. तो overall unit 7 ना हमरो एतिके points अछि. ऑब्जेक्टिव कहले सेटा जो जो यूनिट अछि से सब पॉइंट को जदि आमे भलो से बुझुछु ताले सेटा होछि हमरो ऑब्जेक्टिव. कौन कौन लर्निंग स्टाइल तो बहुत सारा अछि तो मेजर लर्निंग स्टाइल कौन अछि ताका भितर डिस्टिंग्विश केमति करिबा. So this unit presents 6 perspectives on learners which are given below. The learning style and preferences, learners achievement and learning capacity, study habits, learner as a member of a peer group, learning environment and mass media. So these are the 6 perspectives on learners which are given there. तो ये 6टा पर्सपेक्टिव अच्छे लर्निंग स्टाइल एंड प्रिफरेंस गोटे है लर्नर्स अचीवमेंट एंड लर्निंग कैपेसिटी स्टडी हैबिट लर्नर एज ए मेंबर ऑफ ए पीयर ग्रुप लर्निंग एनवायरनमेंट और मास मीडिया और एक जदि आम डायग्रामेटिकली लिखबू ताले भलो बेसी मार्क जदि हमरो कहबा बेसी इफेक्टिव होबो जदि हम किछि कांसेप्ट मैप थ्रो रे लिखुछु डायरेक्ट एमती पॉइंट दे दे लिखले भलो को पर्सपेक्टिव अच्छे बस सिंपल जदि एतिकी पॉइंट आमे मन रखुछु ईच पॉइंट अंडर रे किछि किछि लिखबो विथ एग्जांपल ताले इजी होबो हमको लॉन्ग क्वेश्चन कवर करिया पे. फर्स्ट है लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस. ये लर्निंग स्टाइल इज जेडा हम लर्निंग स्टाइल कहले समस्त लर्निंग स्टाइल अलग अलग अछि. ये लर्निंग स्टाइल इज द वे दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स लर्न. A style of learning refers to an individual's preferred way to absorb, process, comprehend and retain information. तो टीचर तो जने थांती किंतु गोटे क्लासरूम रे डिफरेंट पिला रोन किए समस्त लर्निंग स्टाइल अलग रही तो किए केमिति गोटे जिनस को रिसीव करुच्ची को प्रोसेस रे रिसीव करुच्ची से इनफॉरमेशन को केते केमिति मन रखुची तो ओवरऑल लर्निंग स्टाइल हमर डिफर करिवो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. A learning style refers to an individual's method of making sense of new material, commonly done through sight, touch, and sound. Through sense organ भी कोई परिबा through senses जो sense हमर sense organ रही sense organ through रे भी हम गोटे जिनस को केते रिसीव करूछु केते मन रखि परछु से होची हमर learning style. Learning style consists of two sets of attributes by components. One is temperamental and another is cognitive. और temperament related attributes constitutes one affective style while cognitive attributes determine one cognitive style. गोटे affective style और गोटे cognitive style. Cognitive style कहले हमर mental ability को नहीं कि affective style कहउथले जोटा हमर affection interest केते रहउछ तो से हिसाब रे हमर learning style भी डिपेंड करूछ. तो लर्निंग स्टाइल कंसिस्ट ऑफ टू एट्रिब्यूट्स और टू दुईटा तार कंपोनेंट्स आछी गोटे अफेक्टिव कंपोनेंट अफेक्टिव स्टाइल आउट होची कॉग्निटिव स्टाइल. देन हला लर्नर स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस. लर्नर स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस रे हम चारटा पॉइंट आछी फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंस इंपल्सिविटी वर्सेस रिफ्लेक्टिविटी अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल और सेंसरी मॉडलिटीज बा प्रेफरेंसेस. एथरे हमर कोन आछी फील्ड इंडिपेंडेंस फील्ड इंडिपेंडेंस और फील्ड डिपेंडेंस. फील्ड इंडिपेंडेंस कहले कोन इंटरनल आसीबो हम इंडिपेंडेंट माने नॉट डिपेंडेंट. The individuals who are field independent use an internal frame of reference and can easily impose their own sense of order in a situation that is lacking structure. They are also observed to function autonomously in social setting. ସେମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ ମାନେ field ଉପରେ dependent होउनांदी. Field independent learners approach problem solving in a more analytic manner. Studies have shown that field independent learners perform better than the field dependent. जेतु field dependent जेमति कि हमें कहले किछि पिला थांती पेरेंट को ऊपर डिपेंडेंट जति बापा मां जगी की बसिले पाठ पढु जोंती नहले पढु नांती. किछि पिला थांती टीचर को बिना हेल्प रे से माने किछि करि परिबेन तो जे टीचर ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स को ऊपर डिपेंडेंट कि बड़ भाई भौणी हेले तांको ऊपर डिपेंडेंट तो तांको हमें कहि परबा फील्ड डिपेंडेंट. आ जो माने निजे करि परचंती कि निजर एनालिटिकल पावर अधिक अछि से हमको किछि बिना हिंट्स देले भी से माने कर दोचंती किछि हिंट्स दबानी किंतु किछि पिला कोन हिंट्स दबा पय पडुची मटेरियल चेंज करिया पय पडुची मेथड चेंज करिया पय पडुची तो माने डिपेंडेंट हे होचंती. Studies have shown that field independent learners perform better than field dependent.
And field independent learners tend to rely less on the teacher and other learners for support. एटा है फील्ड इंडिपेंडेंस. फील्ड डिपेंडेंस कथा आम कहले जोटा कि हूँ इंटरपर्सनल. People who are field dependent are frequently described as being very interpersonal. Interpersonal कहले हम किए का सोशियो जोड़ा हम कहूँ सोशल किए केते सोशलाइज होउछि एटा हम कहूँ इंटरपर्सनल. The people who are field dependent are frequently described as being very interpersonal and having a well-developed ability to read social cues and to openly convey their own feelings. Others describe them as being very warm, friendly, and personable. Field-dependent learning style is defined by a relative inability to distinguish detail from other information around it. माने से dependent, जनक ऊपर dependent कि किसी जिनिस ऊपर dependent. In the classroom activities such as extensive reading and writing, which learners can carry out alone, are useful for field independent learners. That is field dependence versus field independent. To comparison करिबा तो comparison में कौन अच्छी? Researchers have found that field independent learners can easily break complex problem and situation into subcomponents, while the field-dependent learners are more influenced by surface features of the problem and situation. ସେମାନେ ନିଜେ analysis କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ breakdown କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର synthesis power ଅଧିକ ଅଛି field independence learnerଙ୍କର, ତ field dependent ମାନେ ସେମାନେ dependent. It has been further observed that field dependence and field independence are influenced by development. As learners grow older, they become less influenced by surface feature. Surface feature कहले field independence. तो धीरे धीरे जिते आम एज ग्रुप अधिक हो जिते आम ओल्डर हो पिला ओल्डर हो फील्ड इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक हो जो आम कहे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आमर भाइगस की आम पिला हेल्प करवा किंतु किसी समय भितर आम पिला निजे करवा आम पिला इंडिपेंडेंट हो छेड़देवा. तो जिते ओल्डर हो पार आज लर्नर्स ग्रो ओल्डर दे बिकम्स लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय सरफेस फीचर्स. और यदि सरफेस फीचर्स ऊपर लेस इन्फ्लुएंस देन दे आर बिकम फील्ड इंडिपेंडेंस लर्नर. Field independent students are better organized in terms of their note taking skill. जेमती कि आम कहे जड़े जड़े था निजे नोट प्रिपेयर करते निजर ओन क्रिएटिव स्टाइल से लिखती. तो फील्ड इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर नोट टेकिंग स्किल. नोट लिखिबार स्टाइल अलग थाए. हेबा मोर की आइडियाज भल आइडिया माने भल पॉइंट देखि लिखिथिबे कि किछि एक्स्ट्रा आइडिया देथिबे किछि एक्स्ट्रा इनपुट देथिबे अलग किछि एग्जांपल देकि भी लिखंती जदि डायग्राम को जदि बहुत सुंदर करके लिखंती and are better able to restructure problem to suit end goals. Whereas field dependent learners have been observed to be more sensitive to contextual cues and they process problems globally. They are more dependent on their peer group and look to others for cues. I mean peer group upre dependent he jayandi. So these are the basic example of field dependence versus field independence. Then impulsivity versus reflectivity. Impulsivity or reflectivity कौन? Reflective and impulsive. Impulsive students are always in a hurry to give the answer, sometimes even before the teacher has completed the question. Reflective students, on the other hand, think before they answer. In a classroom, they would typically be students who take extended time on a task and produce very accurate work. इम्पल्सिव स्टूडेंट कहले क्वेश्चन न सरुण संगे संगे आंसर दबा छानिया माने आंसर दे दे कि कोन करियो भूल भाल भी बड़े दे दियंती. किंतु रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट माने से माने निजे आगे रिफ्लेक्ट करते जे मु जो आंसरटा भाबुची ठीक भाबुची तमरो कैलकुलेशन ठीक अछि त रीवेरीफाई करंते ताको टाइम को पर्टिकुलर टाइम रे हम भाबी चिंती कि ही आंसर दियंते और एक्यूरेट आंसर ही दियंते. तो से रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट. इम्पल्सिव स्टूडेंट्स हले are always in a hurry to give the answer, sometimes even before the teacher has completed the question. The reflective students, on the other hand, think before they answer. In a classroom, these would typically be the students who take extended time on a task and produce very accurate work. And impulsive students take more chances, resort to blind guesses, are in a hurry to complete the test paper in the process, make more
एरर और इम्पल्सिव स्टूडेंट माने जेहेतु जल्दी जल्दी रे दियंती तेणुकरी तांकर बहुत सारा एरर हुए और रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स आर गुड इन सॉल्विंग problems that demand thinking and restructuring. While other things remaining the same, impulsive students tend to perform better on speed test. The impulsivity versus reflectivity. तो से भीतर हम distinguish करि परिबे मैम हम ऑडिबल क्लास बोली एबे सुना गला ଏବେ ଶୁଭିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। आमे देखि परिबा हम क्लासरूम रे कोडा इम्पल्सिव आ कोडा रिफ्लेक्टिव कहबे। इम्पल्सिव स्टूडेंट कहले हमें जोडा पिला छानिया रे ही जल्दी जल्दी रे दे दियंती आंसर किंतु रिफ्लेक्टिव पिला कहले रिफ्लेक्शन हमें कहूची पिला निजे निजर आंसर को आगो भाबिबे निजे कैलकुलेशन करिवे तापरे ही आंसर दउचंती। तो रिफ्लेक्टिव पिला बा रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट माने बेटर परफॉर्मेंस करंती as compared to impulsive learner. And reflective students are good in solving problem that demand thinking and restructuring. जेहेतु ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ रिफ्लेक्शन करूचंती रिस्ट्रक्चर करूचंती रीथिंकिंग करूचंती तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ एग्जाम रे बेटर परफॉर्मेंस करंती। नहले अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल कोन कोन अदर क्लासिफिकेशन अछि जेमति कि होलिस्टिक लर्नर कहि परिबा स्कैनिंग फोकसिंग serialist. According to Gordon Parks, a learner who uses serialist style processes information in a linear manner. Serial particular serial रे थिबो किछि पिला कोन करन पूरा सिस्टमैटिक लिखुथिबे कहा परे कोन पूरा स्लो माने गुटो सेमरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबे किंतु पूरा सिस्टमैटिक लिखिबे सिक्वेंशियली लिखिबे किछि क्वेश्चन 1 रु 10 अछि पूरा 1 रु 10 लिखिबे तो किछि पिला चाहंती पूरा सिस्टमैटिक। तो अदर क्लासिफिकेशन हमें serialist style कहि परिबा according to Gordon Parks. And learning tasks are worked systematically. तापर अछि holistic learner. Holistic कहले जेटा हम कहछ holistic माने जेटा हम कहछ all rounder गोटे पिला हम सब आडे तांगर नजर he looks for wide ranging link with other material. से गोटे जिंस को सब material सहित लिंक करि परबे sometime across subject and make considerable use of analogy. Particular गोटे जिंस को different subject सहित लिंक करि परथबे different material सहित लिंक करि परछन ताको हम कहि परबा holistic learner. Then हला scanning. Scanning कोला हम स्कैन करूछु तो scanning learner कोन ना scanning is a reading technique that allows readers to quickly locate specific information in a text. A learner who uses scanning works out hypothesis from the given information and test it. Scanning कर देंते माने पढ़ी की ही मन रखी दियंती एमने एमिति जेमते कामे को किछि पिला एमिति मन रखी दियंती पूरा स्कैन कर देथिबे कहू जे आंसर पेपर पूरा पर्टिकुलर से आंसर ही थिबो एटा स्कैनिंग माने पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही समान स्कैनिंग कर देंते और स्कैनिंग को हिसाब रे समान तापर होय तो मेमोरी पावर अधिक थिबो। A learner who uses focusing works by altering one attribute at a time. A learner who uses focusing works by altering one attribute at a time. गोटे समय रे गोटे जिंस को भी फोकस करंते किछि पिला ताको हम फोकसिंग भी स्टूडेंट कहि परिबा। More than one attribute at a time. माने गोटे समय रे more than one attribute भी नि करि परिबे आ गोटे टाइम रे पर्टिकुलर गोटे एस्पेक्ट को भी समान फोकस करि परछन ताको हम कहि परिबा फोकसिंग। Under focusing one does not test hypothesis. Hypothesis कहले जोटा हम होचे टेंटेटिव तो टेंटेटिव जिंस को एठी टेस्ट करिए फोकस से करछन्ते माने से माने सियोर थिबे एठी टेस्ट करू नांदी। Focusing is intellectually less demanding and this explains why most learners prefer to use it. Besides focusing works faster than scanning. तो स्कैनिंग अपेक्षा फोकसिंग ता हमर अधिक काम करबो कारण पर्टिकुलर हमें गोटे एट्रिब्यूट को फोकस करि परिबा किबा नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स को भी फोकस करि परिबा। It should however be remembered that all learners especially adult learners do not use just one cognitive style or strategies based on it. तो ए जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर रहले एटा कॉग्निटिव स्टाइल को नै कि रहिले आ हम तो एडल्ट लर्नर को गेस रे देखिबा समाने ए जो कॉग्निटिव स्कैनिंग फोकसिंग तो ए भीतर से गोटे भी स्टाइल करंते एडल्ट को केस रे हमें जो पर्टिकुलर एप्लीकेबल सेटा हमें
देन हला सेंसरी मॉडलिटीज बा प्रेफरेंस जोड़ा हमें कहूचे थ्रो सेंस ऑर्गन पे हमरो कोन इंपोर्टेंस रही सेंसरी मॉडलिटीज बा प्रेफरेंसेस विजुअल लर्नर्स लर्न इजीली एंड बेटर थ्रो साइट जो माने विजुअल लर्नर बा बेसिकली गोटे जिंस को देखि कि से माने जेंति कि सेति में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करू कि मैम पिला एट ए टाइम स्लाइड आसुनी तो स्क्रीन ले स्लाइड शो होनी नहीं मैम मैम होचे ହଉଛି 5-7 मिनट मैम हेलानी होचे स्लाइड आसुनी होचे नहीं स्लाइड तो प्रेजेंट चली स्क्रीन तो शेयर होईची यस मैम स्लाइड आसी आई गेस तांकर नेट प्रॉब्लम स्लाइड शो करूची नहले मु आउथरे ट्राई करूची नहीं मैम स्लाइड शो करूची ମ୍ୟାମ୍ ଶୋ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ଶୋ ହଉଛି मैम ସ୍ଲାଇଡ୍ स्लाइड मैम हाँ शो करूची स्लाइड स्लो हो होम शो हो एबे हला तो आज्ञा यस मैम देन हला सेंसरी मॉडलिटी को हमें जो टीचिंग आमे कहू अपन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को प्रेफरेंस दोछु बाबे जोडा कहू लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स माने पर्टिकुलर गोटे मटेरियल पिला एट ए टाइम जेमति कि हमें कहू पिला आ मटेरियल ता हमर ऑडियो हे पारे विजुअल हे पारे ऑडियो विजुअल भी हे पारे तो पिला एट ए टाइम देखिबे सुनिबे टच भी करिवे तापर टीचर को वॉइस भी रहउची तो एट ए टाइम सब जिनिस हेले पिला इजीली तांकर लर्निंग हे परिबो तो से सेंसरी मॉडलिटीज बा प्रेफरेंसेस कौन रोचे ना विजुअल लर्नर्स जो माने केवल पर्टिकुलर देखिकी ही से माने तांकर लर्न करि परिबे बा बेटर कहि परिबा जेमति कि साइट को नेकी जेमति ब्राइटनेस साइज कलर डिस्टेंस क्लैरिटी फ्रेम एंड सिमेट्री आर इंपोर्टेंट टू विजुअल लर्नर्स हमें जो भी टीएलएम व्यवहार करिबा पर्टिकुलर कलर भी एप्रोप्रिएट रहबा दरकार सपोज कि हमर भारत मानचित्र जोटा ग्रीन अच्छी आम पाखे ग्रीन कलर अवेलेबल ना हमें ब्लू दे दबा ब्लैक दे दबा तो सेमिति नहीं कलर भी एप्रोप्रिएट हवा दरकार ब्राइटनेस भी रहइबो फिका हबनी कि बेसी डीप हबनी प्रॉपर डिस्टेंस रे मेजरमेंट रे हवा दरकार क्लैरिटी रहइबा दरकार तो हमें जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पिला ता पर डिपेंडेंट ता पखरु लर्निंग करचंदी हमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल टा एप्रोप्रिएट हबार अछि तो सेंसरी मॉडलिटी को गोटे विजुअल गोटे आमर सेंस ऑर्गन जेमति रहले आखि जोटा हमें कहूचे तो विजुअल लर्नर्स मस्ट सी सो दैट दे मे लर्न इजीली विजुअल लर्नर्स मे बी कैटेगराइज्ड एज वर्बलिस्ट और इमेजिस्ट माने जो वर्ड और लेटर किबा इमेज और पिक्चर को देखि ही सिखि परिबे while learning English the verbalist will see जे माने वर्बलिस्ट जे किछि जिंस वर्ड बा लेटर सिखुचंदी से कोन माने क्राउन भळे जानिबे किंतु जो इमेजिस्ट कोन आसीबो माने क्राउन को से क्राउन जन छाडी के लिखा है while the imagist may see crown as a king wearing a crown जे इमेजिस्ट से तमे तो वर्ड कहबो क्राउन जे इमेजिस्ट से कोन भाबिबो क्राउन कोन जिंस क्यों जो माने किंग जो जिनस पिंचु ताको क्राउन किंतु जे वर्बलिस्ट से फोकस करबो क्राउन रो प्रोनाउंसिएशन केमती होउची वर्ब वर्ड लेटर ता ऊपर फोकस करूची तो सेंसरी मॉडलिटी जो सेंस ऑर्गन रहिला हमरो तो विजुअलिस्ट ऊपर धरो सपोज हमको क्राउन विषय रे पढेबार अछि तो हमें ए किंग वेयरिंग क्राउन बा गोटे किंग क्राउन पिंथिबो ताको नेकी भी हमें इंट्रोड्यूस करि परिबा in order to distinguish between two homophones example son and son son and sun the verbalist will focus on the middle vowel that is o and u but the imagist will associate son with the image of a boy standing by the side of his father and son with the image of the rising sun and the sun in the sky माने सपोज हमें सन और सन पढ़ेबार अछि son sun जे वर्बलिस्ट सपोज तुम इमेज देखौनो तो ताले पिला होते सेठी कंफ्यूज हे पारे जे वर्बलिस्ट अछि जे वर्ड लेटर रे एक्सपर्ट हे अछि से होय तो बुझि जाई पारे किंतु हमें जते सोन आ son आ sun को इमेज माध्यम रे देखेबा जे गोटे सन तार छिडा हे जे बापा को साइड रे छिडा हे आ गोटे तार राइजिंग ऑफ सन दीटा रो देखे देले इमेज देखे देले ही पिला सेठी इजीली बुझि जिवे कि son कोन sun कोन आमे भाबु जो एटा बहुत इजी वर्ड पिला बुझि जिवे किंतु गोटे क्लासरूम को गले पर्टिकुलर सेही एज ग्रुप को गले सेही क्लास में son son and sun भी डिफिकल्ट
कारण पिला आजिकल बहुत पिला अछंती कि लिखि पारु नांती, प्रोनाउंसिएशन करि पारु नांती, भूल भाल लिखुचंती, तो तांको पे SON भी कष्ट हे पारे, SUN भी कष्ट हे पारे। तो आमे किछि जिंस को भाबी बने जे एटा इजी, तो आमे ट्राई करबा सब बळे बेस्ट टू बेस्ट दबा पे, सेति पे आमे सब बळे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को फोकस करछु। जे आमे इमेज देखे दोजु ताले पिला को भितर आ किछि कंफ्यूजन रहिबनी, सेति पे आमे PPT प्रिपेयर करूछु, किछि एनिमेशन ग्राफिक्स किछि वीडियो भी आमे देखै परिबो पिला को। हेला सेंसरी मॉडलिटीज माने एटा हल विजुअल। तापर ऑडिटरी कहले हमर जोडा पिला माने किछि शुणी की ही मन रखुचंदी। ऑडिटरी लर्नर अछंदी एक्वायर इंफॉर्मेशन थ्रू साउंड। ऑडिटरी लर्नर्स मे बी ओरल, दे लर्न बाय लिसनिंग टू अदर्स और ओरल, they learn by taking and hearing themselves. Oral is AURL, oral है listening and oral है जोटा कहबा। they learn by talking and hearing themselves, माने कथावार्ता थ्रू रे भी किछि जण सिखुचंदी आ किछि जण खाली सुनी के भी सिखुचंदी। तो unless the teacher provides these learners with adequate auditory input, they become frustrated and restless in the classroom. जेमति कि हम क्लास रे कोन थांती ना विजुअल इंपेयरमेंट पिला भी थिबे जो माने देखि पारु नांदी कि पार्शियली देखि पारुचंदी, किंबा किछि पिला थांदे पिक्चर को बुझी पारंतीनी, कारण सब प्रकार रो पिला अछि ता समस्त को नै कि हमरो क्लासरूम चलिबो। तो गोटे क्लास रे आमे खाली जे आमे इमेज को फोकस करबा सेमति नै, आमे ऑडिटरी लर्निंग मटेरियल को भी फोकस करबार अछि। सेति में आमे किछि एडुकेट ऑडिटरी इनपुट भी नंबर अछि। ऑडिटरी इनपुट कोन एबे जेहेतु स्कूल गुडा रे प्राय तो स्मार्ट बोर्ड हे गलानी, आमे आराम से ऑडिटरी इनपुट दे परिबा। प्राय तो हाई स्कूल गुडा सब स्पीकर जेहेतु स्मार्ट क्लासरूम रे स्पीकर भी नंबर लगे जाउछि, तो तांको हमें वॉइस भी क्लैरिटी दे परिबा। हमें यूट्यूब रो वीडियो नै परिबा कि जे कोनोसी वेबसाइट रो जेमति कि हमें कहले स्वयं रे हो प्रति क्लास रो वीडियो रहिछि, 6 क्लास रे ए कंटेंट केमति पढा होछि, तो कंटेंट अवेलेबल अछि। हमें सेठो भी किछि आईडिया नै परिबा। सपोज फूल विषय रे पढेबार अछि, तो फूल को हमें केमिति पढेबा, केमति प्रोनाउंसिएशन करिबा, फोनेटिक्स कोन आसीबो, तार डायग्राम कोन आसीबो, तो हमें तार हेल्प नै परिबा। So unless the teacher provides these learners with adequate auditory input, they become frustrated and restless in the classroom. तो एमिति भी पिला थांदे जो माने ऑडिटरी ऊपर डिपेंडेंट, ताको हमें यदि ऑडिटरी हमर ठीक से सपोज हमर वॉइस क्लियर है, सब बेले कोन है टीचर को वॉइस भी क्लियर न थाए, माने ठीक से सुना जाए नहीं, आइदर वॉइस मॉड्यूलेशन एपट सेपट थाए कि ठीक से माने पिच कहार हाई थाए, पिच कहार कम थाए, तो ता पय भी पिला सफर होंते देने जे खाली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जेहेतु ऑडिटरी बा तमकर वॉइस ऊपर डिपेंडेंट, हमर वॉइस रो भी सेति क्लैरिटी रहिबा दरकार, नले हम साउंड प्रोवाइड करि परिबा। तो ऑडिटरी लर्नर्स रिवील देयर थॉट एंड थॉट प्रोसेसेस through their speech, hence the teacher can easily identify these learners. तो ये हला ऑडिटरी लर्नर। सेमति हमर अछने मोटर लर्नर्स। मोटर लर्नर कहले जो माने मोटर एक्टिविटीज थ्रू रे सिखंती, माने थ्रू किछि एक्टिविटीज थ्रू रे से माने देखिबा सुनिबा अपेक्षा ताको जदि तुमे जिंस दे देबो किछि एक्टिविटीज दे दोछ ताले ताकर लर्निंग अधिक हे परुछ। The motor learners learn through motor activities. Various aspects of action, example frequency, duration, intensity, pressure are important for them. वो frequency रे duration ने बा केते intensity केते pressure रे कोन जे कोनसी तमे activities दोछ, activity ऊपर से माने डिपेंड करंदी। तो motor learners may be kinesthetic. They learn through the use of gross motor muscle or mechanical. They use fine motor muscle and support their learning. माने motor skill through रे ही से माने सिखिबे जहा भी सिखु जंदी, तो ताको हमें कहि परिबा motor learners. So sensory preferences have an important message for whole class teaching. The teacher should provide for visual learners by developing a comprehensive blackboard summary. तो at last time blackboard summary सेति हम कहूच बारंबार blackboard लिभेबानी क्लास सरीबो जेतला हम इवैल्यूएशन स्टेज को आसीबा ब्लैकबोर्ड लिभेबा, अदरवाइज ब्लैकबोर्ड रिपीटेडली इरेज करा होबनी। फॉर ऑडिटरी लर्नर्स थ्रू हिज हर टॉक, सपोज जो पिला विजुअल ऊपर डिपेंडेंट हम ब्लैकबोर्ड रे लिखिबा, हम पाखरे सपोज नाही किछि हमें किछि नहीं नो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो हम ब्लैकबोर्ड ही हम पई काफी ब्लैकबोर्ड रे हमें पॉइंट लिखि परिबा, किछि ड्रॉ करि परिबा, सेति में कहै जाय ब्लैकबोर्ड सब बड ऊपर यूज करबा और लेफ्ट टू राइट यूज करबा, सो दैट हमको बारंबार लिभेबा पे पडिबोनी। और ता सहित कहवा भी पड़ो, सेमती नहीं जे खाली लिखा सहित कहवा भी पड़ो, जी शुणिकी मन रखी पारे तो सी, कारण बेले बेले आमर
कौन कनेक्शन भी रहा दरकार बेले आम कहू गोटे लिखु गोटे कि लिखुव गोटे कहबू गोटे माने छोट छोट मिस्टेक नुह पिला से गोटे बड़ मिस्टेक से कैप्चर करदे दिन कहे कि टीचर एटा ही कही तो सेटा हमें केयरफुल हवा दरकार एंड फॉर मोटर लर्नर्स थ्रो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग तो आमर जो ये आहरी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छी किंतु मटेरियल आमर 3 टाइप्स जोड़ा अच्छी विजुअल ऑडिटरी आमर है मोटर तो विजुअल आम कौन कर ब्लैक बोर्ड रे प्रॉपर समरी लिखि परिबा ऑडिटरी लर्नर आमर जो वॉइस टा क्लियर हबार अच्छी आदि मोटर लर्नर कथा कहवा किसी एक्टिविटी दबा से एक्टिविटी जब दबु ताले भलरे शिखिबे नले शिखंते कि पिला बुझी पारंतिनी सपोज आम मु पीपीटी करिबिनी खाली एमती पढ़ेबी जहाँ भी डिफिकल्ट हम कौन टीचर कौन कहते एते लिंक करियो पर किंतु यदि हम पीपीटी बनाउचे प्रॉपर लाइन लिखा होची ता संगे हमर वर्बल प्लस जो रोची इमेज दीटा भितर कोऑर्डिनेशन रहला हमर लर्निंग टा बेटर हे परिबो तो आम यदि एते बड़ बड़ पिला आम पे एमिति लगे से छोट पिला तो तांको पे आउटी अधिक हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करि परिबा देन होची अचीवमेंट एंड लर्निंग कैपेसिटी achievement and learning capacity हमर दीटा पॉइंट आछे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एकेडमिक अचीवमेंट एंड लर्निंग कैपेसिटी अचीवमेंट हम का को कहबा अचीवमेंट कहले द ग्रोथ इन एबिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड इज कॉल्ड अचीवमेंट माने के केते ग्रोथ कहले नंबर रे नुहे हमर डेवलपमेंटल हिसाब रे कहार केते ग्रोथ हे जेमति कि एज ए रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल मेंटल फिजियोलॉजिकल फिजिकली जोटा तो एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट experience of growing up in human society and formal education children develop abilities to perform tasks that they were unable to do earlier. This growth in ability can be measured and is called achievement. As a result of schooling and interaction with peer group, children's achievement increases with the passage of time. जो achievement हमें कथा कहले पिलार psychological हो as a result of or physiological हो. The experience of growing up in human society and formal education. ସେମାନେ କେତେ एक्सपीरियंस गेन କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ପାରୁଛି କୋ ହିସାବରେ ନା ସାଇकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हिसाବରେ. Children develop abilities to perform tasks that they were unable to do earlier. जो जिनस से पूर्वर करना एबे करि परछंती तो सेटा तांको पई हला अचीवमेंट आ अचीवमेंट कोन होबो ना जतले इंक्रीज भी होबो as a result of schooling and interaction with peer group children's achievement increases with the passage of time. Achievement is broadly categorized into two categories gote hela scholastic or also called the cognitive or academic and out hochi non scholastic किछि scholastic area रे हमर achievement हे परिबो आ नले non scholastic area रे भी हमर achievement हे परिबो जेमति कि लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट रहला सिलेबस ओरिएंटेड रहला ताको हमें कहि परबा scholastic area आ non scholastic कहले कोन होबो जेमति कि स्पोर्ट्स हला डांस म्यूजिक तो एगुड़ा होची हमर हला नॉन स्कॉलास्टिक एगुड़ा हला अचीवमेंट देन हला फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एकेडमिक अचीवमेंट जो एकेडमिक अचीवमेंट रहला को फैक्टर इन्फ्लुएंस करूची ना इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर को हम कहबा लर्नर रिलेटेड फैक्टर और हला एक्सटर्नल फैक्टर लर्नर रिलेटेड फैक्टर रे कोन अछि ना पिलांकर फैक्टर को नेके जेमति कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी गोटे लर्नर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी केते अछि पिला केते सेल्फ कॉन्फिडेंस केते सेल्फ मोटिवेटेड केते रहउछि तो एडा को हम कहबा लर्नर रिलेटेड फैक्टर और इंटरनल फैक्टर आकर स्टडी हैबिट केमति अछि लर्निंग स्टाइल केमति अछि आ एक्सटर्नल फैक्टर कथा कहबा एक्सटर्नल फैक्टर पुनी हमर टू टाइप्स आर अछि गोटे हला टीचर रिलेटेड एंड अनदर वन इज एनवायरमेंटल रिलेटेड. The teacher-related factors that influence learners' academic achievement are acceptance of and caring for learner, classroom management and student grouping, effective use of instructional techniques and teacher expectation. तो एटा किछि पॉइंट लिखा है जे टीचर रिलेटेड फैक्टर कोन हे परिबो ना टीचर को एक्सेप्टेंस क्वालिटी रही पेवा दरकार पिला को केयर करिवा दरकार क्लासरूम मैनेजमेंट जो अछि हमर डिफरेंट टाइप्स जेमति कि
centralized, decentralized, authoritarian, democratic, participatory, non-participatory. तो classroom management हमारे different types ର अछि. तो जे teacher हिसाब रे को केतळ को management से provide करिवे. Then effective use of instructional technique. जो instructional technique अछि को method follow करिवे, को technique follow करिवे, को प्रकार assessment tool use करिवे, ताकर कंटेंट सब कंटेंट एक्टिविटीज को हिसाब रे प्रिपेयर करिवे. तो एगुडा होची एक्सटर्नल फैक्टर. आ एनवायरमेंटल फैक्टर कहले ता सराउंडिंग रे हमर क्लासरूम माने हम स्कूल कोठी अछि, ता आख पाखरे कोन अछि, स्कूल एनवायरमेंट केमती अछि, स्कूल ले पिला केमती अछंदी, स्टाफ केमती अछंदी, कम्युनिटी मेंबर केमती अछंदी. तो ओवरऑल को हम कहबा एनवायरमेंटल फैक्टर. जेमती अछि पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट कैन हेल्प द टीचर टू क्रिएट ए फेवरेबल लर्निंग एनवायरनमेंट. Proper classroom management includes management of time as well. This can be better understood in terms of allocated time, instructional time, and engaged time. तो टीचर में जो एक्सटर्नल फैक्टर है तो टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट फेवरेबल हेतिबा दरकार आ ता संगे टाइम प्रॉपर मैनेज करि परथबे. देन कोन अछि allocated time कोन, instructional time कोन, engaged time कोन अछि. Allocated time कहले टीचर को केते टाइम अलॉट करा है. जेंति कि allocated time is the amount of time that the teacher or the school specifies for teaching a curricular subject or one of its unit. Particular तब साइंस दिन को साइंस पीरियड केतेटा रहइबो ताको allocated time. Then instructional time is the amount of time available for teaching after routine and administrative tasks are completed. Suppose our time bade our instructional time केते available अछि for teaching after routine and administrative tasks. Then engaged time कोन है, it is the amount of time during which students attend to and are involved in learning activities. माने allocated time बदे instructional time बदे भी आमे पिला को किछ activities रे engage करि परिबे. एगुडा को आमे external factor रे नै परिबा. Allocated time, instructional time, engaged time. Then learning capacity. Learning capacity can be defined as ways that individuals recognize, absorb, and use knowledge. जोड़ा आज पर हेनरी 2014 ने कहते लर्निंग कैपेसिटी कोन, जोड़ा हम होचे लर्निंग स्टाइल, जोड़ा लर्निंग कैपेसिटी भी कहि परिबा. For example, we learn and perform more successfully when we feel secure, happy, and excited about the subject matter. जोड़ा हम कहबा हमर लर्निंग कैपेसिटी भलो अछि तळे कि हम फील सिक्योर, happy, and excited about the subject matter. Excited, happy, feel secure केतळे हेबे त टीचर समिति सिचुएशन प्रोवाइड करथिबे, समिति कंटेंट प्रिपेयर करथिबे, समिति मेथड से फॉलो करथिबे, समिति एक्टिविटीज भी फॉलो करथिबे. It also has the potential to interfere with learning as we may be easily distracted from learning if we feel anger, anxiety, and sad. तमे डिस्ट्रक्शन भी आसे. सपोज घरे किछ डिस्टर्बेंस हेतु घरे का छै त हम कॉल करके जाइथिबु ताले भी हमरो सेठी डिस्ट्रक्शन आसी जाउ छै, डिस्ट्रैक्ट हे जाउ छै हम पर्टिकुलर लर्निंग रो. Emotion may interfere our learning capacity by limiting our capacity to balance emotional issues with learning, creating anxiety towards learning, and triggering emotional responses in learning. So that is learning capacity. Then is study habit. तो कहार कते स्टडी हैबिट केमती रहउछ. Why do some learners learn better than others? काहे कि किछि पिला अन्य पिला पकरू भलो रिजल्ट करचंदी तो ताकर स्टडी हैबिट सेठी आसुची. So it is an interesting question because difference in achievement cannot be entirely explained in terms of difference in intelligence. तो खाली जे हमें कहबा जे इंटेलिजेंस पई ही से माने करचंदी नुहे ता की केते परिश्रम करूची कहार स्टडी हैबिट केमिति अछि. The educational psychologists have tried to answer these questions through research. They attribute differences in achievement to three factors: family or environmental support, personal motivation, and study habit. से तीनटा कथा कहले ओड फैमिली, एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट, पर्सनल मोटिवेशन एंड स्टडी हैबिट. तो स्टडी हैबिट भी हमरो ऊपर हमरो रिजल्ट भी डिपेंड करूछ. द लर्निंग हैबिट्स आर रेगुलरिटी. जो स्टडी हैबिट हमें कथा कहले कोन हे परिबो रेगुलरिटी, focused attention, perseverance or task, persistence, orderliness, and neatness. जोटा कि गोटे गोटे हमें डिस्कशन करिबा. रेगुलरिटी कहले पिला रेगुलरली पढुथिबो, रेगुलर प्रैक्टिस थिबो. देन फोकस्ड अटेंशन. फोकस्ड अटेंशन कहले
पर्टिकुलर अटेंशन थी जेमती कि गोटे काम ही तार attention thibo. The focused attention is to actively focus on one thing without being distracted by other thing. Distraction heaven particular gote jinso re hi focus karibe. Thela focused attention. Then perseverance or task persistence. Perseverance कहले goal or passion over time गोटे जिनस को हमर जदि ability टा stick करूछ constantly रहिला. Then perseverance बा task persistence. Perseverance refers to our ability to pursue a goal or passion over time and stick with it if we encounter obstacle or setback. यदि हमर किछ obstacle आसुची पढिया पे इच्छा होनी ता परे भी हमर ability टा constant रहउची तो ताको हम कहि परबा perseverance or task persistence. One continue to make effort to achieve one's aim even if the task in hand is uninteresting and not much stimulating. ना कामटा इंटरेस्टिंग थाउ कि न थाउ ताहले भी गोटे पिला जते कांस्टेंटली कंटिन्यू करू जे से जिंस को अचीव करिया पे तेडा को हम कहबा परसिवरेंस और टास्क परसिस्टेंस. मते एनी हाउ ए टास्क टा सरीबार अछि. सपोज मते 2 घंटा बसिया पे कष्ट लागु छ त एनी हम जहा हाले भी मते क्लास करिया पे अछि. टास्क परसिस्टेंस बा मैम टिके पूर्व स्लाइड टा देखांदो. पूर्व स्लाइड म्यूट कर देबे कि मैम टिके पूर्व स्लाइड टा देखांदो ना. पूर्व स्लाइड हला फोकस्ड अटेंशन. आगे सीधा Focused attention कहले हमें कहूछु the focused attention is to actively focus on one thing without being distracted by other thing. Particular गोटे जिंस पर हमें फोकस करबा attention टा गोटे आडे ही रहइबो. So without focused attention into the task in hand the time invested cannot be very productive. यदि हमें particular attention न दउछु focus न दउचे ताले जो टाइम आमे इन्वेस्ट करूचे गोटे जिंस माने पढिबारे सेटा प्रोडक्टिव होबनी. हमको दमे यदि अटेंशन न रहउचे डिस्ट्रैक्शन हे जाउचे ताले एटा सेही जिंसटा प्रोडक्टिव होबनी टाइम रे. कंसंट्रेशन रहइबा दरकार. एटा हला फोकस्ड अटेंशन. The state of concentrating on one object. Subject भी हे परिबो. Then hela orderliness or neatness. Orderliness कहले हम proper केमते arrange करिवे proper order रे. The quality of being well arranged and organized is called orderliness. और neatness कहले किए केते neat and clean ताकर पढ़ा को हो त खाता बही assignment project किए केमते सजेइ चंती कोन करचंती ता ऊपर भी हमर learning depend करछ. Orderliness and neatness. Then learner as a member of a peer group. Peer group कहले peer माने हला हमर सब सांगो हमें peer बोली कहूछ. मैम टिके पूर्व स्लाइड टे टिके देखम. पूर्व साइड हला orderliness and neatness. ओके मैम. Then learner as a member of a peer group. Learner as a member of a peer group. Peer group कहले हमर जो सांग हम कहूछ हमर फ्रेंड सर्कल केमते अछि. ओपन peer group हे पर closed peer group. बेबे हम स्कूल ले कोन करू एमिति सांग बनै दो हमें न्यू मेंबर को ऐड करू. हमें हमर 5 जण सांग माने 5 जण रहबे हमें आ काहा को ऐड करिबो. तो सेटा हबो क्लोज्ड हे जबो. जति हम समस्त को नै हमर ओपन अछि जेतले चाइबो हम भरे साम सहित सांग हे परिबे ताले सेटा हमें कहबा ओपन peer group. तो peer group थ्रू रे भी हमें किछि सिखि परिबा. ए कहार कोन आ ओपन peer group हेले भलो किंतु एज हिसाब रे हमर केतले ओपन peer group भी थाए आ केतले क्लोज्ड peer group भी थाए. माने एज हिसाब रे हमर डिपेंड करूछि. Then learning environment केमिति होबा दरकार ना कॉम्पिटिटिव हे पर और कोऑपरेटिव हे पर. लर्निंग जो एनवायरनमेंट रे पिलांगर लर्निंग हो से एनवायरनमेंट ता केमिति होबा दरकार. कंपटीशन माइंड रहबा दरकार. माने पिला को हम सेंते एनकरेज करबा त नले पिला पाठ पढिबन. कंपटीशन रहबा दरकार और कोऑपरेशन. बेबेले कंपटीशन दरकार बेबेले कोऑपरेशन दरकार. बेबेले हमें कंपटीशन कहले कि आगो करबो कि परे फास्ट होची कि सेकंड होची किंतु बेबेले कोन होची ना समस्त मिसी के कामडा कले हे जाउची. तो केते बेले कंपटीशन रो एनवायरनमेंट दरकार केते बेले कोऑपरेशन रो एनवायरनमेंट दरकार. Then why should teachers use cooperative learning environment? जे टीचर काहे कि cooperative environment यूज करबा दरकार.
Students find learning in such environment more interesting and effective. जेहेतु ସେମାନେ ନିଜର peer group ସହିତ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିବେ थ्रू एक्टिविटीज हो पारे कि जेकोसी एक्सपीरियंस जेकोसी टास्क हो पारे ता थ्रू पिला तांको भितर सोशल इंटरेक्शन हो पारिबो फ्रेंडली से माने हो पारिबे जी जहाँ को तांकर क्लास ग्रुप पिला को जानि पारिबे सेति हमर कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी दरकार तो सेति पे हमें कोन करिबा किछि टास्क दबा किछि ग्रुप वाइज टास्क दबा आ ग्रुपटा केमिति होबो हेटेरोजीनियस ग्रुप होबो जेमते नै कि हमें 1 to 10 ग्रुप कर दबा रोल नंबर 10 to 20 बराबर चेंज करिबा 1 3 5 रेंडमली सिलेक्ट हेटेरोजीनियस ग्रुप हम आम केबे भी होमोजीनियस ग्रुप करिबानी होमोजीनियस कोन खाली भलो पिला गोटे ग्रुप कर दबा खाली खराब पिला गोटे ग्रुप कर दबा माने पढ़ारे तो ताले से हिसाब रे तांगर लर्निंग टा प्रॉपर हे परिबो आम ग्रुप करबा जेमति कि गोटे पिलार मैथ भलो होउची आ गोटे पिलार साइंस भलो होउची ओ जार साइंस भलो होउची मैथ भलो होउनी जार मैथ भलो होउची साइंस भलो होउनी तो आम से ग्रुप रे किछि टास्क दउछु तले गोटे मैथ पिलाटा साइंस पिला को भी बुझेई परिबो जार साइंस भलो होउची से मैथ पिला को साइंस भी बुझेई परिबो तो ग्रुप टा सब बेला हमर हेटेरोजीनियस होबा दरकार बेले बेले कोन होय कि जोटा जो जिंस टीचर बुझेई परंती ने सेमान तको प्योर ग्रुप रे ही सिखि परंती किछि पिला थांती सांग माने बुझेई देबे बहुत भलो रे बुझी जिबे किंतु टीचर बुझेइले बुझी परंती तो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग भी बहुत इंपोर्टेंट जो व्हाई शुड टीचर्स यूज कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आ कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट नेक्स्ट जिबा आउरे दुटा यूनिट अछि आ कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जदी कथा कहबा कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट काहा को कहबा जेटा कंपटीशन आसुची जे in spite of the obvious difference between competitive and cooperative learning environment we know that some learners perform better in competitive learning environment than in others this holds good especially for relatively advanced learner जे advanced learner अछि तांको पे भलो जे भलो से सब बेले फास्ट हबो तो सब बेले फास्ट नै जे थर्ड होतबो फोर्थ होतबो ता भीतर भी क्यूरियोसिटी आसबो हम फास्ट केमती हेबी कि जे लास्ट थिबो से एवरेज होतबो कि बेबे जे फास्ट स्टूडेंट था से भी लास्ट को आसी परुची तो कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी रहबा दरकार किंतु एटी मोर बेसिकली कि एटी बेनिफिट होचंदी ना एडवांस्ड लर्नर सेमते किछि नै हम बेबे हम कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी फ्रेमवर्क करबा दरकार क्लासरूम रे कारण आमे हमर टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करिया को पड़िबो ना डेली डेली तो आमे समान से ट्रेडिशनल पढेबानी केतले कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिबा केतले कोऑपरेटिव भी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिबा Thus, an effective teacher may provide competitive as well as cooperative learning environment to one's students depending upon their strength, weakness, preferred learning style, and personality characteristics. We should remember that in spite previous slide. मैम स्लाइड शो करूनी Slide show करनी नो मैम ଶୋ କରୁଛି ମ୍ୟାମ୍। show କରୁଛି ତ नो मैम शो करूनी ହଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି show କଲା ଏବେ नो मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଶୋ କରୁଛି। यस मैम शो କରୁଛି। ସେୟାରିଂ ଦେଖଉଛି ହଉ ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ତମର ସେଥିପାଇଁ ଶୋ ହଉନି ବୋଧେ ହଉ ଦେନ୍ ହେଲା ମାସ୍ ମିଡିଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାସ୍ ମିଡିଆ ମେନଲି 3 ଟାଇପ୍ ସେଟା କହୁଛି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟେ ମାସ୍ ମିଡିଆ ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ସେ ହେଲା ମାସ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିଲା ରେଡିଓ ହେଇପାରିଲା ଏବେ ତ ରେଡିଓ ହଉ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନ ବି ପିଲା ବେଶୀ ଟେଲିଭିଜନକୁ ବି ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ହେଲାଣି ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଲା ତା ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ତ ରେଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବେସ୍ଡ ମାସ୍ ମିଡିଆ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ କମ୍ପାକ୍ଟ ସିଡି ଡିଭିଡି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ମାସ୍ ମିଡିଆ ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବା ଯେମିତି କିଛି ଟିଭିରେ ଅଛି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆସୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୋ ଦେଖେଇ ପାରିବା କୋଉ ଟାଇମରେ କ'ଣ କିମ୍ବା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି କିଛି ମୁଭି ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଭି ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା
आ किछि प्रिंटेड मास मीडिया जेमति कि न्यूज पेपर हला मैगजीन हला बुक्स हला जर्नल हला किछि आर्टिकल्स हला जेमति कि पेपर गुडार बहुत सारा आर्टिकल आसुछि एडिटोरियल जो पेज रही एडिटोरियल पेज को पिला को हमें पढ़िया पे दे पर बहुत सारा इनफॉरमेशन रहउछि तापर हमर इंग्लिश न्यूज पेपर अच्छी ओडिया न्यूज पेपर अच्छी ओडिया न्यूज पेपर बेसिकली हमर ओडिसा रो कथा रहउछि किंतु जो हमें नेशनल न्यूज पेपर हिंदू हला टाइम्स ऑफ इंडिया हला मतलब डिफरेंट एरिया रो न्यूज रहउछि जा पर पिला को बहुत सारा इनफॉरमेशन हेटी मिल पिरो मास मीडिया पर्सपेक्टिव जे एंटरटेनमेंट भी आसुछि एनरिचिंग क्लासरूम लर्निंग मेजर लर्निंग रिसोर्सेस भी किछि माने करंट अफेयर्स भी मिल जाउछि सब चेंज होउछि ना सब बळे करंट अफेयर भी हमको जानिया पे वर्ड्स पिक्चर मैप डायग्राम किछि सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी रहउछि मास मीडिया रे किछि टीवी प्रोग्राम अछि जे डिस्कवरी चैनल हला दूरदर्शन नेशनल डीडी भारती तेमती टेलीविजन ने भी किछि हिस्ट्री चैनल हला ज्योग्राफी चैनल हला तो चैनल बहुत सारा अछि सेउडा को मास मीडिया कहि परिबे ता थ्रो रे सपोज टीचर अवेलेबल नाहंती कि कोन कि देह भल नै जहाँ भी पिला को हम एंगेज करिया पे मास मीडिया थ्रो रे पिला को इन्फॉर्मेशन दे परिबा सब बळे न टीचर ही देबे इन्फॉर्मेशन तो आमे मीडिया थ्रो रे भी दे परिबा से मीडियम टा कोन हेई पारे एटा मीडियम टा हमरो टेलीविजन हेई पारे किछि भी हेई पारे देन इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग गले की केमते पढिबो जेमते कि इंडिविजुअल डिफरेंस अछि इंडिविजुअल लर्निंग भी से भळे हेई परिबो हमरो बुझी हबो नेक्स्ट जिमा The following classroom techniques have proved useful for most teachers. कौन ना individual learning पे हमें individual worksheet दबा common worksheet दबा नहीं blackboard रे गोटे worksheet लगे दबा सब पिला इन्वॉल्व हे परिबेनी तो इंडिविजुअल लर्निंग पई ईच एंड इंडिविजुअल को हमें वर्कशीट दबा किबा सब पिला को खाता रे कहबा तुम एटा ड्रा करो एमती टेबुलेशन करो सब पिला को खाता रे जेमती हेतिबो नहले सब पिला को हमें सफिशिएंट वर्कशीट प्रोवाइड करिबा वर्कशीट माने गोटे प्लेन व्हाइट पेपर रे भी हमें किछि जो टेबुलेशन दे परिबा जोटा हमें गोटे कॉमन ब्लैक बोर्ड रे करूछु ब्लैक बोर्ड रे भी गोटे करिबा किंतु सब पिला को देले तांको भीतर क्यूरियोसिटी डेवलप होबो मु से करिछि हाथ टेकिबे के फास्ट करिछि के कोन करिछि जदि सब पिला को दबा पई पॉसिबल होउनी सेथि पे हमें ग्रुप करूछु ग्रुप होय 4-5 जण मिसी के वर्कशीट फिल अप करिवे आ ग्रुप रो ना सब बळे इनोवेटिव दबा सपोज मु पढौछि फोर्स तो फोर्स रिलेटेड जो टर्म थिबो न्यू टर्म पिला माने एक्सप्लोर करिवे नेक्स्ट से भलिया किछि टर्म हमें ग्रुप रो ना दबा सपोज इनर्शिया ए ग्रुप रो ना इनर्शिया से ग्रुप रो ना कोन हम इनोवेटिव ग्रुप ना देले पिला माने इंटरेस्टेड हेबे सब बळे ग्रुप रो ना सेमति दबानी कि 1 2 3 4 ए बी सी डी तो पिला तो इंटरेस्टेड हेबे ना ग्रुप ना मन सब पिला को हम रिपीटेडली पचरिया तम ग्रुप ना कोन से कहबे इनर्शिया तो इनर्शिया एमति बारंबार से वर्ड कहिले भी तांको माइंड रे आसीबो ताली इनर्शिया कोन क्यूरियोसिटी डेवलप होबो हमाने आइदर से माने निजे स्टडी करिवे नहले नेक्स्ट क्लास रे तमरो से टॉपिक थिबो कि सेही क्लास रे भी थई पारे तो ग्रुप रो नेम भी किछि इनोवेटिव होबा दरकार डिफरेंशिएटेड सीट वर्क हमें पिला को रीअरेंज भी करि परिबा डिफरेंशिएटेड होम असाइनमेंट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान अलगा प्लान भी करि परिबा एमते डिफरेंट टेक्निक अछि इंडिविजुअलाइज्ड वर्कशीट कोन वर्कशीट जेमते हमें जहां हमर कंटेंट ऊपर डिपेंड करूछि डिफरेंशिएटेड सीट वर्क कहले डिफरेंट टास्क एज देयर सीट वर्क कि कोडी बसछन से हिसाब रे टास्क दबा बेले कोन हुए हमर टॉपिक एमती थाए डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट टास्क दबा पे पड़े कॉमन टास्क दबा पे पड़े सब टाइम कम अछि हमें कोन करिबा पांचटा ग्रुप करछु पांचटा ग्रुप को अलग अलग टास्क दे देबा तापर सेही टास्क को हमें जनरलाइज करिबा माने सिचुएशन ऊपर डिपेंड करूछि होम असाइनमेंट हमें जो होम असाइनमेंट दोछु माने विभिन्न प्रकार होम असाइनमेंट भी हमें दे परिबा जेमति कि फार्मिंग रिलेटेड हला कि जे कोन किछि प्रोजेक्ट हला तनले इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान हमें इंडिविजुअल को पई भी हमें किछि प्लान करि परबा वन पेस एबिलिटी एंड सीक्वेंस बेस्ट सुइटेड टू हिम और हर कहा पई कोन केमिति प्लान दरकार से हिसाब रे हमें प्लानिंग करिबा देन ब्लॉक 3 अछि ब्लॉक 3 रो हमें देखिबा गोटे यूनिट की दुटा यूनिट जदि डिस्कशन करि हबो ब्लॉक 3 अछि लर्निंग एनवायरनमेंट भी हमर लर्निंग ऊपर केमती इंपैक्ट पकोछ तो से 3 यूनिट 8 और यूनिट 9 हमें देखिबा यूनिट 8 रे कोन अछि लर्निंग एनवायरनमेंट मीनिंग एंड स्कोप
सेकंड यूनिट 9 अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट होम एंड कम्युनिटी। तो यूनिट 8 रे कौन अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी, टीचर्स बिहेवियर, पीयर ग्रुप बिहेवियर, लर्नर प्रिफर एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, देन इनफॉर्मल इनफॉर्मल कौन आछी होम एंड कम्युनिटी, मास मीडिया। जेहेतु हमर लर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाउची हमर होम रु फैमिली रु, सेति सी होउची हमर इनफॉर्मल लर्निंग बा सोशलाइज्ड प्रोसेस, इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट। और यदि फॉर्मल कहबा हम स्कूल, टीचर, पीयर ग्रुप, फिजिकल एनवायरनमेंट, तो एगुड़ा होची हमर फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट। आ एई सब टर्म सहित समस्त एक्वेंटेड। Learning environment कौन ना environment may be described as a composite of natural condition, circumstances and influences and socio-cultural context in which an organism is situated। जोठी पिला हमर रहिबो तार कंडीशन केमती अछि, रूम रो कंडीशन केमती अछि, क्लीनलीनेस केमती अछि, ब्यूटिफिकेशन केमती अछि, ताकर जो माने हाइजीनिक केमती मेंटेन होछि, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट केमती अछि, तो ओवरऑल को नै कि हमर लर्निंग एनवायरनमेंट आसुछि। फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट रो कोन आसुची ए पांचटा आसुची। स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी माने स्कूल होची गोटे सोसाइटी, छोटो सोसाइटी। देन टीचर बिहेवियर माने जो लर्निंग एनवायरनमेंट टीचर बिहेवियर पे इंपैक्ट पकोची। देन पीयर ग्रुप बिहेवियर, लर्नर प्रिफर्ड एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट। तो येला फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट का को कहउछ ना, जेहेतु गोटे स्कूल ही पिला रहउची मैक्सिमम टाइम स्कूल ही शिखुची, स्कूल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहउची, सेतमे स्कूल एनवायरनमेंट को ही हमें फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट कहि परिबो। नले स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी, जेहेतु सोसाइटी रे जेमती डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कल्चर डिफरेंट स्टेटस रो रहउचंती लोक, सेमती स्कूल ले भी हमर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट एबिलिटी रो पिला रहउचन। सेतमे हम स्कूल को भी गोटे मिनिएचर सोसाइटी कहि परिबा। एटी हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ पीपल रहउचंती। लोकल नॉलेज को नेकी, लैंग्वेज को नेकी, जेंडर को नेकी भी हमर स्कूल रे, सेतमे हम स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी कहि परिबा। देन टीचर बिहेवियर केमिति होबा दरकार, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन कहले जेडा हमें कहउचे डोमिनेटिंग, यदि टीचर को नियम मानुचन त ठीक अछि, टीचर को नियम न मानले ताको एटी पनिशमेंट मिलु, जेडा अथॉरिटेरियन जने ही सेटी ऑथराइज्ड। परमिसिव कहले ना टीचर स्टूडेंट मान को फ्रीडम सती के देई थांती, से माने निज हिसाब रे काम करिवे, निजे डिसीजन नेबे। टीचर्स डू नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट को से कंट्रोल करंतिनी, किंतु केतेबेला को बिहेवियर रहबा दरकार सेटा भी डिपेंड करूछि। देन अथॉरिटेटिव कहले अथॉरिटेटिव टीचर्स एस्टैब्लिश्ड रूल्स, एटी नियम तो बनेबे, माने अथॉरिटेरियन ने भी सी रूल्स फॉर्मेशन करूतिला, न मानेले पनिशमेंट दोतिले, किंतु एटी टीचर अथॉरिटेटिव रे टीचर ही रूल फॉर्मेशन करिवे, किंतु विथ द हेल्प ऑफ स्टूडेंट कोन चाहउचंती तांकर माने तांको हिसाब रे ही से रूल्स माने से हला अथॉरिटेटिव। तो टीचर्स का बिहेवियर अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अथॉरिटेटिव हे परियो। केमती पीयर ग्रुप बिहेवियर केमती हबा दरकार ना, पीयर ग्रुप माने कोन हबा दरकार, सब बेले मिसिबा दरकार। बेले कोन होते किछि माने एग्रेसिव थांती, किछि चिडांती, तो टीचर माने पीयर ग्रुप जो रही, पीयर मान को ग्रुप सब बेले एमती फ्रेंडली हबा दरकार। Each learner perceive the prevalent school situation differently, thereby experiencing the learning affarin। हाँ, तो एगुड़ा हले पीयर ग्रुप रे माने सांग मानकर केमिति हबा दरकार, जेहेतु डिफरेंट कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन रो अछंती, तो पीयर ग्रुप को बिहेवियर तो अलग आसीबो, हेले भी हमरो जेंति सब फ्रेंडली रहबा दरकार। एंड लर्नर प्रिफर्ड एनवायरनमेंट कहले पर्टिकुलर लर्नर को बा स्टूडेंट लर्निंग को तांको लर्निंग स्टाइल को नेकी हमरो एनवायरनमेंट भी हबा दरकार। लर्नर प्रिफर्ड एनवायरनमेंट केते टाइप्स अछि, 3 टाइप्स अछि, रिफ्लेक्टिविटी, इंपल्सिविटी, फील्ड डिपेंडेंस, फील्ड इंडिपेंडेंस, सेंसरी मॉडलिटी प्रिपेयर, जोटा कि हमें प्रीवियस यूनिट रे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारछु। रिफ्लेक्टिविटी और इंपल्सिविटी कोन, जे इंपल्सिव लर्नर कथा कहतलु, इंपल्सिव लर्नर कथा कहले ना जेडा हमें कहूछु जे इंपल्सिव लर्नर माने जेहेतु पढ़ा सरछि हम रिपीटेड करा होनी। इंपल्सिव जेडा हमें कहूछु जे पिला जल्दी माने आंसर दे दोचंती, म्यूट कर देबे।
ଲିଜା ସାହୁ म्यूट कर देबे। फील्ड डिपेंडेंस फील्ड इंडिपेंडेंस सेंसरी मॉडलिटी ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्लाइड रे डिस्कशन करछु। तापर हला फिजिकल एनवायरनमेंट का को कहबा हम फिजिकल एनवायरनमेंट इज ओनली वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन ए स्कूल। आ फिजिकल एनवायरनमेंट कहले हमर कोन आसीबो ना एडुकेट सिटिंग प्रोविजन फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचिंग लर्निंग एड्स लाइक ब्लैक बोर्ड। ए सब जिंस गोटे क्लासरूम रे जहां जहां जिंस रहबा दरकार सिटिंग अरेंजमेंट होची कि नहीं, प्रॉपर लाइट फैन अच्छी कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन होची कि नहीं, पानी आमर पिला जहाँ जहाँ जी दरकार जिनस क्लासरूम ठीक अच्छी कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी कि नहीं, तो एगुड़ा को आम कहीपर प्रॉपर करिकुलम करिकुलम ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ जिनस देखा आम फिजिकल एनवायरनमेंट कहीपर जो इक्विपमेंट्स हो पार। देन इनसाइड फॉर्मल देन इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट रे कौन आसीबो इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट रे हमर आसीबो जो लर्निंग डज नॉट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल सेटअप लाइक ए स्कूल को छाड़ी के हमर जहाँ होछि नाले इनफॉर्मल वे रे होछि जेमति कि हमर होम एंड कम्युनिटी आसीबो मास मीडिया आसीबो दीटा हमर लर्निंग एनवायरनमेंट आसीबो। हम घर भी किछि सिखुछि होम एंड कम्युनिटी रे किछि सिखुछु सेटा को हम कहिबा जेमति कि हमर किछि नंबर ऑफ बुक्स हैला घरे हमर किछि मटेरियल अछि माने हमर टेक्स्ट बुक बादे भी आम घरे किसी अलग बही अच्छी जोटा पिला पढ़ुंट किसी मटेरियल अच्छी क्या पाखे डिफरेंट खेलना